So I will be sharing a PPT. Okay, this was the introduction. Now we will move toward the procedure part. Okay, so before moving there, I think that one should clear about this thing. Why do you want to join? This is the first question. It should be come into your mind while going into the defense armed forces. Because let me tell you, as my experience, say that it is not the profession where the your skills is going to make a huge difference. Here your attitude as well as your thrust, your power, your push towards the armed forces is also a propeller while you're journeying. So first of all, it should be very clear in your mind, why do you want to join? And it is very famous question in the interview, that why do you want to join the armed forces? So everyone have different answers, so be clear with it, why do you want to join? And another question that should be asked is, do you have it in you? Because without having that potential, without having that courage and stamina, it will be a little bit difficult for you. I'm not talking about the SSB journey. It is all about when you entered into the armed forces. As per I know, that it is the job which is not a 100-meter sprint. It is a marathon. So you need as well as your uh, potential as well as the patience. That two things are very much required. So I think that it is clear. Now we will move towards the procedure. Then okay, where there is a will, there is a way. So these are the ways by which you can join the armed forces. There are some general entries basically for the graduate, irrespective of they are BTech graduate or commerce graduate or law graduate. Like for Indian Army, you can opt for the CDS. FCAT entry is also available, but since for you people are from the law background, so only GD option, that is ground duty option, will be there for FCAT. And for PG students, education branch is there in Air Force. It used to be happen in the army, but recent days it is not coming out. And these are the entries which is only for the law graduates. There is JAG for Army, Navy, Air Force, and as well as Indian Coast Guard. And I think that many people are unaware about that कि Indian Coast Guard में भी JAG की entries होती हैं. So and their notification come under the website of Ministry of Home Affairs. So you should check it. And here I will not discuss too much about the written examination pattern, because I think that that is the part which is you know uh, individual. क्योंकि जितना मेरी प्रैक्टिस है, जितना मेरे को नॉलेज है, मे बी द पर्सन हु इज sitting in front of me have the different ways, or maybe on the upper side or lower side. So I will not discuss about the written entries, because that is now eligibility. This is the eligibility for the JAC. You should have minimum 50%, 55% aggregate marks in LLB, as well as the candidate should be eligible for the registration as an advocate with the bar council. So this is the basic requirement for the JAG entry. And now procedure. Once you enter into the SSB, the first procedure will be your screening test. And it comprises of two tests basically. One is the OIR, that is Officer's Intelligence Rating, which includes some question regarding verbal, non-verbal, mathematical reasoning, dictionary, dice, and dice. There are some question in which it is the dices are like or like figure completion, jumble the words. These kind of questions are asked. And the second part is PPDT, that is picture perception and discussion test. Friends, OIR test is basically a reasoning test, and it is not same in every SSB. It is different at every SSB. Basically, it is designed by the DIPR, that is Defense Institute Psychological Research. So the set number which you are getting, this is the that will be the reason you will get the different kind of sets. Sometimes you may get 45 questions, sometimes you may get 50 questions, and the timings are also varied according to the number of questions. Sometimes it will be on for 27 minutes, 17 minutes respectively. And for practicing such kind of questions, I have mentioned some links at the end of the PPT, so you can visit it. So that's why I'm not discussing the questions regarding the OIR. And let me tell you honestly, these are the very basic questions. If you are able to do some basic reasoning, then obviously you can do that. There is nothing too much rocket science behind the OIR that you have to practice too much. It is a general reasoning question. And the second part that I've discussed, that is PPDT. And in PPDT, you have to see such kind of picture which will be shown on the projector on a very big screen.
and the timing will be 30 seconds for the observation, 1 minute for the detail filling, and 4 minutes for the writing a story. Here you can ask कि ये picture थोड़ी blur क्यों है? For the PPDT, it is deliberately kept blurred because after PPDT you have to discuss the picture. अगर पिक्चर एकदम क्लियर होगी कि वहां पे दो लोग हैं और कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकॉज एवरीवन विल बी द सेम कि हाँ दो लोग थे डिस्कशन कर रहे हैं. बट हियर you can see that some people will observe there are four people, some people will observe there are six people, or some people can say that this is a car, or some people can say this is a cannon like structure. So to make the different perceptions, it is shown too much hazy or too much blurred. So that is the reason why the PPT picture is too much blurred. Now you will get a paper sheet of such proforma where you have to mention your number of SSB. Like if you are reporting to the SSB Allahabad having board number 14, then you will write 14 SSB Allahabad. Batch number you will be allotted, chest number, whatever you get the chest number, your name, your age, as well as the date of the screening. And there will be three parts. One is the box. Here I think that you can show. I think you can see it, and the second will be the action written here, and the third portion will be written by the story. The box is assumed to be the exact replica of your picture that is shown to you. Like let me show. If you can see there is a rectangular picture, so same will be there. You can consider this rectangular box as your rectangular picture. Now if you see this person, are you able to see the cursor? Yes, sir. If you see this person first, like when the picture is flashed on the projector, आपको ये person सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है? Then you have to encircle this position in the box. Here I have shown you that that person which is shown first to you was somewhere here. So you will make a circle and fill three details. First one is the mood of the person. If you think the person is looking in a positive mood, then you have to write plus. And second detail will be the age of person. If you are saying that is it around 23 to 24, whatever you think, you can assume. You don't have to write a range. It can be 23 or 24. You have to write an exact number. Then you have to write the gender of that person. If you found that person is male, then you have to write M. If you found that person is female, then you have to write F, that is for female. And if you are not able to distinguish between male and female, then you have to simply write P, that stands for the person. Same for the mood. If you found that he is in a positive mood, then you have to write plus. If you found that he's in a negative mood, then you have to write minus, negative. And if you found that you cannot decide whatever the person is having mood, then you can write it as a 0, that is for the neutral mode. So this will be the detail filling. And the same as for the other characters that you see, like for the first character you have already encircled it, and the rest of the character and their details will be written here where they are seeing in the picture. Like here you can see there are 1%, 2%, 3%, 4%, or 5%. So first person you have mentioned under the circle, the second person's detail will be here, thirds will be there, fourth, and by simply you can make all the details. And the action part, as you have seen in the picture that there are some vehicle, and if your story is basically on rescuing a person who met an accident, then you will write here the action of the story. That is basically the title of the story. जो हम लोग बचपन में नहीं करते थे कि पैराग्राफ है, give a title, same kind of thing that we have to do, action. And there will be the story. Story should be for 100 words, because the time which you are getting is 4 minutes for writing a story. So I think that you can write around 100 to 120 words, and the 1 minute will be the detail filling that I have told, and 30 seconds will be the for observation. After 5.5 minutes your papers will be collected. Okay, till now, if anyone having any doubt? Yes sir, I do have. So sir, जो अपनी जो अपन एज लिखते हैं, तो एज एग्जैक्ट एज लिखना जरूरी है या फिर मैं लिख सकता हूँ 25 to 30? No, you are asking about your age or your character's age?
मेन कैरेक्टर से, जैसे आपने 23 लिख रखा है ना, तो मैं इसका हाँ 20 to 25 भी लिख सकता हूँ। yes yes, you have to write the exact number. You cannot write a range. Like if you are confused that he may be of 22, maybe of 23 or 24, then you cannot write 22-24. You have to pick a single number. ओके सर। Okay. हेलो। हाँ हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर, जो टाइटल होता है तो वी हैव टू राइट टाइटल इन अ लाइन और इन अ वर्ड? You are asking about the action? यस सर, एक्शन। हाँ, you have to write in a sentence, like वन वर्ड? हाँ, no, you can write in a sentence, in a single sentence. It is So not. can you give me some example? Yes, I can give you. Like for this, if I am perceiving that someone have met an accident and my character was the person who rescued the person who was injured during the accident, then what I will write? I will write rescuing a person from accident. I can write it like that. ओके Okay. ओके सर, थैंक यू। Anything else? यस आई डू सर। जैसा कि अपन स्टोरी लिखते हैं, तो स्टोरी में अपन किसी को एक पर्सन को हीरो अज्यूम करके स्टोरी, जैसे इसमें रेस्क्यू कर रहा है उसको एक्सीडेंट से, तो उसमें एक पर्सन को हीरो करके स्टोरी लिखनी है, या फिर 2 पर्सन को भी मतलब लिख के कर सकते हैं? I will discuss it, and let me, for the time being, I will tell you one thing: ki it is not mandatory that you have to pick 1%, 2%, or 3%. It is up to you. Since you are a single person, then obviously it is a thumb rule that you will write a story. There will be one character who will be the hero of the story. But it doesn't mean that all the person who are in the picture are inactive. They can also do some kind of action, but the whole action will be surrounded or around by a one person, that is your hero or your character or main character of your story. It is basically a thumb rule which is in practice. ओके सर। Okay, so this will be your day of end day of screening. You will you have to write and these kind of details, and your paper will be collected. Now it comes to the discussion part. Sir, Okay. Sir, sorry to disturb. No. For OIR, what books would you recommend? Because the last time when I went to the SSB, the OIR level has got difficult. Okay. Let me know your name, please. Rohan. Rohan. OIR है ना, बहुत सब्जेक्टिव है. It is not certain कि हर बार easy मिलेगा या हर बार tough मिलेगा. But if you want to do practice, then there are lots of website. SSB Crack का नाम सुना होगा. और कई वेबसाइट हैं. और बेसिकली अगर तुम्हें बुक ही रेफर करनी है, then you can refer any book which is basically for SSC and such kind of examinations. SSC, FCAT, ये जो एग्जाम होते हैं ना, इनके लिए जो रीजनिंग होता है ऑलमोस्ट सेम लेवल होता है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डाइस के होते हैं, मे बी वो ट्रिकी होते हैं. उसका लिंक उसके चैनल मैंने लास्ट पीपीटी में अपने स्लाइड में ऐड कर रखे हैं. ठीक है, यू विल गेट दिस. Thank you, sir. हाँ. Sir, one more thing I want to ask. Yes. That can you please tell the how to write story? With that, how we should start? हाँ. I have already made PPT on that. I've told you that now I am just describing the procedure. Afterwards, I will describe do and don'ts. Okay. So it is just a procedure that I'm trying to explain you. Okay, sir. I have not come up to that part. I will come there, and if you found any doubt, then you can ask me there. Okay, sir. Okay, so this will be the end of your screening. Now you will be taken into a room, and if reporting is around 80, then the group will be divided into 20 to 17 group member. Like अगर 80 रिपोर्टिंग हो रही है तो 20 के ऐसे 4 ग्रुप बना देंगे. Then you all will be in a big room in a semicircular way, and 3 assessors will be there. One will be your GTO, one will be your psychologist, and the one will be your interviewer. And each and every member of the group will narrate its story one by one. Okay, and as the last person end, the GD start. The GD will be on the basis of the picture whatever is shown to you in the screening hall. जैसे ये पिक्चर अगर शो की गई तो इसके ऊपर डिस्कशन होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर किसी को सब कुछ सेम दिखे. दैट्स व्हाई दे हैव केप्ट इट ब्लर्ड.
अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कार का एक्सीडेंट मुझे इस टाइप का दिख रहा है, किसी को मे बी ये कैनन दिख सकती है, so that will be discussed in the GT. He will say, okay, this is Canon. I will say, okay, it is a car. So this will be the discussion part. Okay. And we have to come to a common conclusion, because at the end they will say, the assessors will say, you have to come to a conclusion, and one person out of your group will narrate the conclusion of the story. You are what kind of a person you want to be. This will be the psychology test. Okay. And I will discuss each and every aspect. Like I will discuss about TAT, VAT, SRT. I have some sample, for the TAT, VAT, SRT. So do not worry, I will discuss it. And for self description, let me tell you here only. It is as written that, wait a second. Just a second. Hello, am I audible? Yes, sir. Haan. So I will discuss about TAT, VAT, SRT. SD, I'm discussing here only. Parents' opinion. It is a very simple thing. You have to write as it is. अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स को लगता है आप बहुत आलसी है, then you have to write it bluntly. And yes, there will be a mix of thoughts. Like ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर सिर्फ खामियां ही खामियां हैं. माना पेरेंट्स ऐसे कहते होंगे, but it is not like that. And same for the teachers, same for the friends. And this is the part which you have to introspect. What kind of a person you are. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लाइफ में मेरा जो मोटो है, मेरा जो एक एम है लाइफ को लेके, दैट इज कि आई हैव टू लिव अ वेरी एक्टिव लाइफ. डजंट मैटर हाउ मच आई एम अर्निंग, बट इट शुड बी वेरी एक्टिव, हेल्दी, एज वेल एज द वर्क कल्चर शुड बी लाइक फैमिली camaraderie, that should be there. So that kind of a life I want to be. So I will write these things under the heading what kind of a person you are, and what kind of a person you want to be. Same, like what are the expectations for me towards my goal, towards my life. Then I will write these kind of things. Okay. Have you any confusion? You can ask. So I'm moving to the next part. Should I move, or anyone would like to ask any question? Yes, I do want to go. Yes. मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अपन मतलब ये जो एसबी होगा, ये अपने जो पीआई होगा, पीआई में इस पे ही क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, वो इस पे पूछेंगे. तो ये जो अपना लास्ट वाला जो पॉइंट है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, तो इस पे आप थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि मतलब इसमें क्या लिखना चाहिए जो ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा रहेगा. ओके गंगा, लेट मी टेल यू. जो 3 एसेसर्स होते हैं आपके, साइकोलॉजी वाले एसेसर हो गए, साइकोलॉजिस्ट, आपके जीटीओ और आपके इंटरव्यूअर, ये एक सिंपल रूल है, दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर. और ये जो पोर्शन है आपका साइकोलॉजी टेस्ट में आता है, ठीक है. और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो तो आपसे मिलता तक नहीं है, और जो इंटरव्यूअर है वो आपका इस पे नहीं होता, वो आपका होता है आपके पीआईक्यू फॉर्म पे, ठीक है. उसमें जो आपने डिटेल्स फिल कर रखी हैं उस पे क्वेश्चंस होगा. और आपने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, इन हेडिंग्स के बारे में बताना. यस, आई विल डिस्कस इट, बट डू नॉट कंफ्यूज इट कि ये जो है ना, ये इन सब के ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा. इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपके पीआईक्यू पे बेस पूछा जाएगा. जो आप डिटेल, जो आपकी हॉबी, इंटरेस्ट, और जो आपकी जर्नी रही है अभी तक की, एकेडमिक्स हो गया, आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया हो गया, उन सब चीज़ों पे पूछा जाएगा इंटरव्यू में. साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, ठीक है. एंड लेट मी मोर डिस्कस अबाउट दीज 2 हेडिंग्स. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. Ganga, let me ask you, what kind of a person you are? If I'm asking you, then what will be your response? Just a normal human being. Just a normal human being. Okay. So what are the other qualities that you are having? That's why I should, the interviewer should select you. क्या है अपने क्वालिटी? कुछ तो होगा. आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, या बहुत शांत स्वभाव के हैं, या फिर आपको क्या बोलते हैं, क्या करना अच्छा लगता है, मतलब what kind of person you are? So I'm dedicated towards like my work and like what to do in life. So I guess. Okay, basically you are a hard-working person, huh? Yes, sir. So you will write these things under this heading. Ki Ganga will write ki I am a very hard-working person, and whatever you have done
till now? Because since you are saying that you are a hard working person, then you must have achieved some, you must have cleared some examination. If not, then you have prepared, you know, 100% for the examination. Then you will write it ki, okay, I have prepared for so and so examination, and full concentrated determined person. So you will write such kind of thing, what kind of a person you are you getting my point? Yes, sir. And what kind of a person you want to be? Ganga, what is your aim? Yes, sir. वही मैं कंफ्यूज हूँ Sorry, सर, वही मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब क्या है? कंफ्यूजन किस बात का है? कुछ तो एम होगा. अरे चलो, विल नॉट डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर प्रोफेशन. एक एम तो होगा कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, दोस्तों के लिए कुछ करना है. ये तो मतलब बेसिक एम होगा ही सबका. यस, एक्चुअली सर, जब हम एसडी का मतलब वहाँ पे भर रहे होंगे तो उस टाइम पे तो ये चल रहा होगा कि हाँ, मेरा एम ये है कि मतलब मैं जैग में सेलेक्ट हो जाऊँ, जैग ऑफिसर बन जाऊँ, काइंड ऑफ दैट, या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैं वर्क करूँ. तो ये लिख सकते हैं, या फिर जो मतलब रादर देन इट की लाइक आई डू लिटिगेशन और लाइक मैं लॉ से रिलेटेड ये करना चाहता हूँ, या ऐसा कुछ? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. इफ यू वांट टू बी इन द आर्म फोर्सेस एंड यू आर डेस्परेट अबाउट इट, देन यू कैन राइट इट. बिल्कुल ब्लंटली यू कैन राइट दैट योर aim is to become an officer, and you have to also mention the reason. You know, you have to also mention the reason. आप ऐसा क्यों बनना चाहते हैं? Because there must be some expectation also mentioned. Yes, Okay, sir. I've told you that why I want to join the armed forces. I've told you that I want a very, you know, disciplined, sporty life. So I will write like ki I want to become an officer, not because just to earn or just to, you know, for the uniform. Whatever the prospects I am perceiving from my life or from the future, then I will write it ki this is the reason why I want to join the armed forces. That's why I have told you initially ki one thing should be very clear in your mind. Why do you want to join? That was my, I think, second PPT. Are you getting? Yes, sir. So that's why I was trying to say. So any other confusion you have? Someone was asking something. Sir, for example, like you said that whatever prospects we have, uska reason bhi dena hai. Mm-hmm. So, for example, in other opinions also, for example, in parents' opinion, that they feel I am a hardworking student, hardworking child, और उसके साथ reason भी देना है क्यों hardworking लगता है उन्हें. Okay, Rohan, I think that many people are getting confused in this, so I will elaborate it little bit more. हाँ, ठीक है. देखो, parents' opinion. अगर आप सिंपल ये लिख के आ रहे हो, दैट इज माई एक्सपीरियंस, जो मैं अभी तक करता आया, जो गलतियां और यू कैन से लर्निंग्स, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ. पेरेंट्स ओपिनियन में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल राइट कि हाँ ठीक है, माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन, and I am a person who respects his elder or love his, you know, younger one, or who is very much adjustable person. Almost 90% population सेम चीज लिखती है, बट द साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपसे मिलता नहीं है. वो जब सेम चीजें पढ़ रखा है, उसने सब में वो यही चीज पढ़ रहा है, वो कैसे बिलीव करेगा कौन सही है कौन गलत है? देन हियर कम्स द रियल टाइम एक्सपीरियंसेस. देयर मस्ट बी सम सिचुएशन, देन यू कैन राइट कि अगर जैसे आपने बोला आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए यू मस्ट हैव डन समथिंग. यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिसीजंस ऑफ योर फैमिली. आपने कभी मम्मी को किचन में भी हेल्प की होगी, कभी अपने छोटे भाई, कभी अपने बड़ी दीदी को कुछ पूछा होगा, कुछ उन्हें बताया होगा. देन यू कैन राइट इट कि आई हैव हेल्प्ड माय फैमिली व्हाइल, यू नो, मेकिंग डिसीजंस टू द हेल्पिंग माय मदर इनटू द किचन. अगर आप ऐसे लिखोगे, इट शोज कि यस देयर इज समथिंग रियलिटी. रोहन, लेट मी टेल यू वन थिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आप एक ऐसा फ्रेम लेके जाओ कि आपको ऐसा ऐसा लिखना ही है. एसएसबी टोटली डिफरेंट है. ये मतलब ये आईएएस के मेंस के क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं है कि उसका कुछ एक पैरामीटर है कि हाँ आपको मतलब ये आपने फिगर्स बनाए, फैक्ट्स बनाए, आपने डेटा रखा है, मैप बना रखा है और जो है एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो वो एक आपका अच्छा आंसर बनता है. यहाँ बात अच्छे आंसर की नहीं है, यहाँ बात सही चीजों की है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जिसने रियल टाइम में, रियल लाइफ में इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है, वो ऑब्वियसली वो जब लिखेगा, देन द यू नो इमोशंस विल फ्लो थ्रू द पेन. उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि जो कुछ बेसिक चीज है ना, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टेबल, ये सारी चीज हर कोई लिखेगा, बट द डिफरेंस विल बी देयर जब आप उन सब चीजों को एक्सप्लेन करोगे. आई नो दैट इट विल बी लिटिल बिट लेंदी, बट इतना भी नहीं होता. यू विल गेट 15 मिनट्स अराउंड, so you can write it these things. Okay, Rohan? Okay, sir. हाँ, सेम फॉर द टीचर, सेम फॉर द फ्रेंड्स. अब देखो, फ्रेंड्स ओपिनियन नॉर्मली लोग क्या लिखेंगे? आई एम अ वेरी, यू नो, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड, माय
friend discuss with me each and everything, चाहे कुछ भी हो, everyone is going to write the same thing. लेकिन जब तुम उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लिखोगे, लाइक कि आई हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड फ्रॉम स्टडीज टू द फाइनेंशियल इवन टू देयर फैमिली मैटर्स, देन इट शोज कि हाँ इसने कुछ लिटरली कर रखा है, दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग सो एंड सो. क्योंकि मतलब सब कुछ एक जैसा है तो उसमें वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा. और आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये सही या गलत का मतलब ये अच्छा या बुरे का नहीं है, ये सिर्फ सही चीजों का मतलब टेस्ट है. दैट्स व्हाई ये साइकोलॉजी टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर यू गेटिंग? Yes, sir. सेम फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वांट टू बी. अरे भाई हर कोई एसएसबी देने आया है, ठीक है, हर कोई एसएसबी देने आया है, तो इतना तो अंडरस्टूड है सब कोई ऑफिसर ही बनेगा, हर किसी को ऑफिसर ही बनना है. दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड थिंग. बट व्हेन यू विल राइट कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस एज वेल, कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, जो आप जब वो लिखोगे देन इट शोज दैट विल बी मैच्ड विद योर आंसर कि हाँ दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्सन वांटेड टू बी. ठीक है. और आप जैसे फॉर मी आई हैव अ प्रॉब्लम सिंस आई हैव done my schooling everything from a UP board Hindi medium, so I have a problem of speaking English in front of people. I have a little bit phobia kind of thing. Then I have written that I have a phobia, or I have a stammering problem, so I would like to improve my this skill, so that I have wrote in the what kind of a person you want to be. So it shows कि हाँ obviously I have such kind of problem, that's why I am writing so and so. अगर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, then अगर उसके बावजूद मैं लिखूं then it is of no use or no point. That's why I'm saying कि SD should be little bit emotional as well as realistic. दोनों चीज होनी चाहिए SD में. Are you getting Okay, what? sir. Yes, sir. Okay. So your psychology test will be done. और आप सब लोग आई होप कि स्क्रीन इन हो जाओगे और आपका सेकंड स्टेज से सॉरी क्या बोलते हैं GTO शुरू हो जाएगा थर्ड डे से. GTO बेसिकली ये 9 टास्क होते हैं GTO में, ठीक है. द फर्स्ट वन विल बी योर GD ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन 2 टॉपिक्स पे होता है, एक होता है करंट अफेयर्स पे और एक होता है आपका जनरल या फिर सोशल टॉपिक पे. एग्जाम्पल के तौर पे अभी करंट अफेयर में आप मान लो इजराइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है, देन इट कैन बी अ टॉपिक कि व्हाई इजराइल इज अटैकिंग, और बेसिकली कि व्हाई यूएन, यू कैन से कि यूएन जो है वो इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, और यूएस क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा है इजराइल की तरफ से या फिर पैलेस्टीन की तरफ से. और जो आपका ऑफिसर होगा वो आपको 3 लीड्स देगा, वो 3 आपको ऑप्शंस देगा कि व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन रीजन. वन कुड बी कि इजराइल के जो हैं थोड़े से एथनिक सिमिलैरिटीज हैं विद यूएसए के साथ. सेकंड क्या है कि इजराइल एक मतलब बहुत क्लोज अलाई है यूएसए का. और थर्ड रीजन वो दे देगा कि जो यूएसए है उसका अरब वर्ल्ड में इंटरेस्ट खत्म हो गया है. देखा जाए तो तीनों रीजन सही हैं, बट व्हाट यू थिंक इज द राइट, you have to stick to that, you have to discuss on that point. Are you getting? Yes, sir. हाँ. The second topic will be the social issue. Social issue कुछ भी हो सकता है कि ये जो ऑनलाइन आजकल पढ़ाई शुरू हो गई है उसके क्या क्या यू कैन से मतलब शॉर्ट कमिंग्स हैं. एक है कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. दूसरा है कि मतलब वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिग्रेड हुई है. तीसरा है कि लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या फिर जो उनका मेंटल पीस है दैट इज being harmed. देखा जाए तो तीनों रीजन सही है, बट व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट रीजन. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना ऑफिसर्स के, वो अपने आप में की होते हैं सिलेक्शन के. क्योंकि वो जब इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है वो हर एक चीज उसके हर एक वर्ड का मतलब है. ही विल बी लाइक कि व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट रीजन. जैसे GD में मैंने बताया, लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं ना, वो उन्होंने जैसे मैंने यूएस वाला एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि ठीक है यूएस का अरब वर्ल्ड में जो है इंटरेस्ट खत्म हो गया. अब सामने से अनुष्का ने या फिर रजत ने या गंगा ने किसी ने बोल दिया कि ऐसा एग्जांपल दिया, उसने इससे ये प्रूव किया क्योंकि इजराइल के एथनिक सिमिलरिटीज ज्यादा हैं यूएसए के साथ, दैट्स व्हाई यूएसए इज नॉट डूइंग समथिंग अगेंस्ट इजराइल. अब मैं उससे कन्विंस हो गया, बट इट डजंट मीन कि अब मैं उसका पॉइंट जो है ना वो उसके बारे में बोलने लग जाऊं ना. वट एवर आई हैव डिसाइड ना, आई हैव टू स्टिक टू दैट, आई हैव टू प्रूव माई पॉइंट. ठीक है, दिस इज हाउ वी कॉल्ड अ GD. Are you getting? Yes, sir. हाँ, the second task will be your GPE, group planning exercise. It will be, there will be some situations. एक आपको स्ट्रक्चर वो ऐसा दिखा देंगे
मतलब ऑन बोर्ड दिखा देते हैं। जैसे आपने पिक्चर्स में देखा होगा ना कि कहीं भी अटैक करने से पहले एक मॉडल समझाते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट पीक, एक मॉडल पे समझाते हैं, 3D मॉडल टाइप का रहता है। वैसे ही जीपी में भी एक मॉडल रहेगा, उसमें आपको एक हैंडआउट देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लिखी रहेंगी कि यू आर अ ग्रुप ऑफ सो एंड सो पीपल, यू आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड यू फाउंड समवन हु गॉट बैडली इंजर्ड। फिर एक दूसरा पर्सन आता है, वो बताता है कि कुछ लोग जो हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं। फिर एक तीसरा पर्सन साइमल्टेनियसली आता है, वो बोलता है कि इसके कैटल डूबने जा रहे हैं, उसको बचाना है। ऐसी कई सिचुएशन आपको बता दी जाएंगी। देन यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको एक मतलब पेज दिया जाएगा, आपको पहले इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है? फिर आपका वो इंडिविजुअल सॉल्यूशन सबमिट हो जाएगा। अब जैसे बोला कि आप लोग 8 लोगों का ग्रुप है और ये 3 प्रॉब्लम है, एक वो इंजर्ड पर्सन को बचाना है, और दूसरा क्या है वो बॉम्ब ब्लास्ट रोकना, और तीसरा क्या है कि इसके जो कैटल डूबने वाले हैं उनको बचाना है। तो मेरा जो मतलब मेरी प्लानिंग के हिसाब से मुझे ये लगता है कि 3 लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट के लिए रोकने के लिए भेजना चाहिए। किसी को लगेगा कि 4 लोग को भेजना चाहिए। तो अब यहाँ पे डिस्कशन शुरू होगा कि लोग डिस्कस करेंगे। नो, आई थिंक दैट विल बी फुल प्रूफ प्लानिंग। सो मतलब एट द एंड द जीपी शुड आल्सो हैव द कॉमन कंक्लूजन, कि आपका एक कॉमन कंक्लूजन निकल के आएगा कि ओके हमारा ग्रुप जो है ना ऐसे करेगा कि 2 लोग को यहाँ भेजेगा, 3 को वहां भेजेगा, 4 को वहां भेजेगा, और वी विल हैंडल द ऑल द प्रॉब्लम। ठीक है? देन वन पर्सन विल बी who is going to narrate or who is going to elaborate the common solution that you have made to the assessor। फिर एक पर्सन जो होगा वो अपना आपको इलेबरेट कर देगा। इस तरह से जीपी होता है। पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसमें क्या होता है, कुछ स्टेजेस होते हैं, बेसिकली 4 स्टेज का होता है। उसमें कुछ बीच में स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ हेल्पिंग मटेरियल होते हैं, जैसे प्लैंक हो गया, ठीक है, रस्सी हो गई, और एक बल्ली हो गया जो बांस का मतलब बैम्बू ट्री टाइप का होता है। इन सब हेल्पिंग मटेरियल से आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होता है। आई नो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स मतलब डाल रखी है, देन यू विल गेट टू नो। ठीक है? तो डू नॉट वरी हियर। एक स्नेक रेस होती है, एयरफोर्स में नहीं हो रही है अभी, बट नॉर्मली होती है कि एक आपको लंबी सी रस्सी दे दी जाएगी, और आपको उस रस्सी को लेके अपने ग्रुप के साथ दौड़ना होगा। और दौड़ते टाइम बीच में बहुत सारे हर्डल आएंगे, कुछ 7-8 होते हैं, मतलब ठीक ठाक होता है। दैट इज फॉर फन एंड जोश ऑफ योर ग्रुप, कि कितना जोश है ग्रुप में, ये देखने के लिए होता है। लेक्चरेट होता है, कुछ टॉपिक्स आपको दे दिए जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कोई हाई लेवल टॉपिक हो सकता है कि नासा के बारे में, इसरो के बारे में। कोई जनरल टॉपिक हो सकता है लाइक कि एजुकेशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया। और कुछ पर्सनल टॉपिक हो सकते हैं, माई फादर, माई फैमिली। और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं, इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो ये मतलब कुछ 4-5 टॉपिक तरह के टॉपिक्स का एक सेट होता है। आपको एक एक चिट दी जाती है, उसमें ये सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं। आपको कोई भी एक टॉपिक अपने हिसाब से पिक करना होता है, और उस पर आपको 3 मिनट्स के लिए अपने ग्रुप के सामने उस पर आपको एक छोटा सा नरेशन देना होता है कि बेसिकली आपके ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके, लेक्चरेट को लेके। ओके, एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ? नो सर, अगर हम जैसे लेक्चरेट में 4 टॉपिक मिलते हैं, ओके, तो वो 4 टॉपिक भी अकॉर्डिंग होता है। जैसे लाइक फर्स्ट वन होता है थोड़ा वो हायर लेवल का होता है, सेकंड थोड़ा मीडियम, थर्ड इज इजी एंड द फोर्थ वन इज मतलब मोर इजी। सो अगर हम फोर्थ वन टॉपिक ले रहे तो वो हमारे मार्क्स में कुछ मतलब वो करता है? अनुष्का, आप पहले एसएसबी गए हो क्या? यस सर, हाँ, फैब में थी मेरी। ओके ओके ओके। सो देखो, Yes, sir. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैटर करता है। मैटर ये करता है कि अगर हाई लेवल टॉपिक उठा रहे हो और उस पर अच्छा बोल रहे हो, देन ऑब्वियसली इट्स अ प्लस साइड। लेकिन अब मैं इसरो उठा के, मुझे इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता है, देन इट इज ऑफ नो यूज। आर यू गेटिंग? कि Yes, sir. देखो, लेक्चरेट ना बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें यार लेक्चरेट में ना मेरे को पॉइंट नहीं आते, मेरे को फैक्ट्स नहीं पता है, मेरे को फिगर्स नहीं पता है। बट लेक्चरेट इज नॉट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर। वो आप ऑलरेडी अपने रिटन एग्जाम में दे चुके हो, और आप उसको टेस्ट करने के लिए अभी आपका इंटरव्यू है और बहुत सारी चीजें। लेक्चरेट में ऑब्वियसली फैक्ट होने चाहिए, लेकिन केवल फैक्ट नहीं होने चाहिए। इट शुड बी कंप्राइज ऑफ योर ओपिनियन। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम मेरा जो टॉपिक था, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अब इसमें मैं फैक्ट बोलना चाहूँ तो मतलब 3 मिनट या 10 मिनट भी कम पड़ जाएंगे फैक्ट बोलने के लिए। कितनी कंट्रीज से हमारा लैंड बॉर्डर है, कितनी कंट्रीज से हमारी वाटर बॉडी है, किससे हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, किससे हमारे थोड़े मतलब तल्ख वाले रिलेशन है, और किससे जो है रिलेशन अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, किससे हमारा लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऐसे बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं। बट व्हाट आई सेड ना, शुरुआत में मैंने आई गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि दीज आर द कंट्रीज विच आर द नेबर्स ऑफ माय मतलब इंडिया। एंड देन आई टोल्ड वेरी सिंपल थिंग। आई सेड कि
if you are living somewhere and you are surrounded by your, you know, neighbors, and all the neighbors are your friends, then obviously you are surrounded by your friends. And if your all neighbors are enemies, then it is automatically you're surrounded by your enemies. So it is up to us how we have to handle our neighbors. That I told कि जैसे नेपाल था इशू, उस टाइम पे कुछ काला पानी का इशू आ रहा था और ये लिम्पिया देवरा Yes, sir. पास Yes, था, sir. वहां पे इशू आ रहा था. देन आई टोल्ड कि नेबर का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके साइज से उसको हम रिस्पेक्ट दें. लाइक जो रिस्पेक्ट हमारी यूएस के लिए, रशिया के लिए या यूरोपियन कंट्रीज के लिए, वी ऑलरेडी नो कि वो रिस्पेक्ट और वो जो हमारे अंदर चार्म है ना अपने नेबर्स को लेके नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ ट्रबल. सो आई मेंशनड इट कि अगर इफ विल गिव द सेम इंपॉर्टेंस, इफ कोई भी कंट्री सॉवरेन है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ फंडामेंटल्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट. ऐसा नहीं कि नेपाल हमसे छोटा है तो हम उसे छोटा भाई यू नो कह कह के कुछ भी बोलते रहे, ऐसा नहीं है. वी हैव टू गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस. तो दैट इज ऑल्सो यार, मतलब बहुत ये लाइफ का सिंपल रूल है ना कि तुम देखा होगा अपने नेबर्स में, जिसको इंपॉर्टेंस दोगे वही क्लोज हो जाता है, जिससे कम बात करते हो, जैसे मतलब की बात करते हो तो वो भी आपसे मतलब की बात करता है. दैट इज अ बेसिक साइंस. सो आई टोल्ड अबाउट इट. तो इसमें ऐसा कुछ फैक्ट नहीं था. दैट वाज अ जनरल यू नो माय ऑब्जर्वेशन. तो ओपिनियन मैटर्स अ लॉट. और आप जो बोल रहे हो कि आप अगर जैसे बहुत बेसिक टॉपिक उठा लेते हो जैसे माय फैमिली माय फ्रेंड, देखो उसमें बुरा नहीं है, बट एटलीस्ट यार मतलब यू ऑल आर ग्रेजुएट्स ना, तो इतना आई विल से कि ऑनेस्टली कि इतना तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये टॉपिक ना बोलो अनटिल एंड अनलेस आपका लक इतना खराब है कि तीनों टॉपिक एकदम ऐसे आ गए कि कुछ पता ही नहीं है. और ऐसा होता नहीं है, रेयर, मतलब बहुत रेयर होता है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा. ठीक है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि तीनों टॉपिक में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ मुझे मेरी फैमिली के बारे में ही आ रहा है, देन यू शुड गो विद इट यार. और हाँ, उसके बारे में अच्छा बोलो, उसके बारे में अपने ओपिनियन ऑब्जर्वेशन अच्छे रखो, कोई उसमें खामी नहीं है. अनुष्का? Okay, sir. Okay, sir. हाँ. सो ये जो आपके बेसिक टास्क होते हैं ना, जीडी हो गया, जीपी हो गया, पीजीटी हो गया, लेक्चरेट आई थिंक सेकंड डे होता है, ठीक है, और एचजीटी में भी कभी कभी उसी दिन हो जाता है. ये जो आपके टास्क है ना, ये थोड़े अलग किस्म के हैं. क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं आपके टास्क ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं कि आप जो जीटीओ के लिए मतलब रिकमेंडेड कैंडिडेट हो कि नहीं हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, खासकर जीडी और पीजीटी. ठीक है, तो इसीलिए पहले दिन हो जाते हैं. और बाकी जो आपके हाफ ग्रुप टास्क हो गए और कमांड टास्क हो गया, फाइनल ग्रुप टास्क हो गया, इनको कंफर्मेटरी टास्क बोला जाता है कि जो जीटीओ ने ऑब्जर्व किया, अगर जैसे जीटीओ ने देखा कि एक इंसान ने इन चारों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो बस ये कंफर्म करेगा एक बार इन सब टास्कों से कि हाँ जो भी उसने ऑब्जर्व किया वो सही है कि नहीं. बट इट डजंट मीन कि अगर उसमें मतलब लास्ट के टास्क में उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो कुछ बैड इम्पैक्ट डालेंगे. लेकिन हाँ, दैट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट कि आपको पीजीटी जीडी मतलब इवन हर किसी में अच्छा करना है, बट विदाउट डूइंग गुड इन दीज स्टार्टिंग टास्क यू कैन नॉट यू नो क्लियर द जीटीओ. ये तो क्लियर है, आपको अच्छा ही करना पड़ेगा. एंड आई हैव यू नो मेड सच काइंड ऑफ स्लाइड्स, so वी विल डिस्कस कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर इंटरव्यू. इंटरव्यू ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है. ठीक है, मेरे को कोई यार क्लियर पिक नहीं मिल रही थी, मैंने यही लगा दी. ठीक है, ऐसे ही कुछ डिस्टेंस होती है. अब जैसे इसका जीटीओ वाले दिन हो गया तो इस वजह से इसने हाफ पैंट हाफ टी शर्ट पहन रखी है. नॉर्मली अगर आपका सेकंड डे होता है यानी साइकोलॉजी वाले दिन होता है तो आप अपना मतलब फॉर्मल्स में जा सकते हो. और जनरली वो बोलते हैं कि अगर आपका जीटीओ वाले दिन हो रहा है और जो टाइम गैप है आपके जीटीओ को एंड होने में और आपके इंटरव्यू में बहुत कम है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो. एक इंटरव्यू होगा, ऐसे इतनी दूरी पे बैठा होगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देन यू हैव टू आंसर. हाँ, बस अभी राइट टाइम में एक ये चेंज आया कि अब यहाँ पे एक स्क्रीन लगी रहती है प्लास्टिक की और आप मास्क और अपने फेस शील्ड में रहते हो. एंड द लास्ट डे विल बी योर कॉन्फ्रेंस. जितने भी आपके एसेसर रहे, साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो आपके जीटीओ सर हों, चाहे आपके इंटरव्यूअर हों, और ये आप जैसे मैंने बताया ना कि अगर मान लो 40 बच्चे स्क्रीन इन हुए, 10-10 के 4 ग्रुप बने, तो हर एक ग्रुप के लिए अलग आपका जीटीओ होगा, आपका इंटरव्यूअर होगा और आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा. तो वो सब लास्ट डे ऐसे सेमी सर्कुलर वे में बैठते हैं. ठीक है, और उनमें से कोई भी, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि कोई भी, मे बी दिस पर्सन, जो जनरली यहाँ होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं बोर्ड के. कोई भी पर्सन आप कुछ भी पूछ सकता है. जनरली तो वो यही पूछते हैं, ओके हाउ वाज योर स्टे, व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव हियर, जनरली यही पूछते हैं. लेकिन अगर मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वट एवर आई हैव ऑब्जर्व कि अगर उनको लगता है कि कुछ है आप में, कुछ मतलब है, तो वो थोड़ा बहुत उसको खींचते हैं कॉन्फ्रेंस को. आपसे कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी जनरल अफेयर का, करंट अफेयर का पूछ सकते हैं, आपकी कोई एसआरटी दे सकते हैं कि ओके यू आर गोइंग सो एंड सो, आपके साथ ये हो जाता, आप ऐसे कैसे करोगे, और कुछ नहीं तो कुछ फनी सा भी पूछ सकते हैं. ठीक है,
तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू हैव टू जस्ट बी योरसेल्फ, ठीक है। सो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है आपका एसएसबी का। तो अभी तक किसी को प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी। यस सर, एक क्वेश्चन था बिल्कुल। सर। जीडी हो गया या फिर लेक्चरेट हो गया, सॉरी जीडी हो गया या फिर पीपीडीडी का नरेशन हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, उन सब में सिटिंग पोस्चर मैटर करता है? मतलब सेम रहना चाहिए सब में? हाँ हाँ बिल्कुल मैटर करता है, वो सब मैंने क्या बोलते हैं अभी आगे आने वाली स्लाइड में मतलब बता रखा है, ठीक है ऋतिक। यस सर। हाँ बिल्कुल मैटर करता है यार, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर ना, तो आप ऐसे एकदम कैपरी में और हाफ टी शर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। नहीं सर, आई एम सेइंग कि आई एम आस्किंग जैसे अभी आपने इंटरव्यू की फोटो दिखाई थी तो उसमें हाथ उन्होंने हाँ हाँ दोनों अपने नीज पे रखे हुए थे, तो वैसे ही रहना चाहिए सब में? देखो स्टार्ट एक अभी मैंने आगे वाली स्लाइड में बता रखा है, लेकिन चलो तूने पूछ लिया तो यही बता देते हैं। देखो मतलब एक जेंटलमैन की तरह आपको बैठना है, ठीक है। आप नॉर्मली क्या देखो, खुद से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अगर आप किसी के सामने इंटरव्यू दे रहे हो, आप हाथों का क्या पोस्चर रख सकते हो, उनको ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनको ऐसे नहीं कर सकते हो आप, मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, अपने थाइस पे अपनी नीज पे ही रखोगे, ठीक है, जेंटलमैन। और उसका एक देखो रीजन, साइकोलॉजी वाला एक रीजन ये है कि अगर आप जैसे बहुत ज्यादा मतलब कंस्ट्रेंड हो, ऐसे हो, कस के बैठे हो, ऐसा सोचा जाता है कि मतलब यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। वहीं जैसे कि मतलब इसके हाथ ओपन है, नॉर्मल नीज पे है, इट इज मतलब अज्यूम कि हाँ दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, ठीक है। और वो थ्रू आउट द इंटरव्यू आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट इज मतलब ह्यूमन नेचर यार। ये कितनी देरी बैठेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करेगा, कुछ ना कुछ चेंज करेगा अपना पोस्चर, वो तो होगा ही होगा। बट मतलब एज अ जेंटलमैन ऑब्वियसली यू शुड सिट लाइक दिस, ओके। थैंक यू सर। हाँ तो ये है बेसिक पोस्चर। और मतलब वहां जाओगे तो आप अपने आप ही तुमको पता चल जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज अपने आप सीधी हो जाती है वहां पे। मतलब यू कैन नॉट बी टू मच क्लमजी, और होगे भी तो आपको इंटरव्यूअर डायरेक्टली बोल देगा कि मतलब सिट प्रॉपरली। और दे मतलब इंटरव्यूअर बहुत सही लोग होते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस इट, ओके। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर वन क्वेश्चन। हाँ हाँ ओके। सर आपकी एसएसबी में आपसे मतलब लॉ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्यादा पूछे गए थे या कम पूछे गए थे? अनुष्का यू आर आस्किंग ना? यस सर। हाँ देखो मेरी एंट्री थी ना, वो एक तो मतलब बीटेक की एंट्री थी, दूसरी मेरी एफकेट एंट्री थी। ओके जैक की एंट्री नहीं थी, लेकिन डोंट वरी, मैंने जैक के भी क्वेश्चंस जो है ना वो लिख रखे हैं। जो जैक में क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो जैक के थ्रू रिकमेंड हुए हैं और जिनको मैं जानता हूँ, तो उनसे मैंने वो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। और देखो आप एक, हाँ ओके आस्क मी। यू आर नॉट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड? No, I am not from law. But let me tell you, SSB is 99.9% is same. You know, नो only दैट आई नो हाँ सेम yes, होता है, बट क्वेश्चंस में डिफरेंट होता है ना। जैसे हाँ इंटरव्यूअर में जैग में कुछ और पूछ रहे हैं, बीटेक एंट्री में कुछ और पूछ रहे हैं। बिल्कुल। हमसे टेक एंट्री में हमसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैग में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने एंड स्लाइड में लिख रखे हैं, सारे लिख रखे हैं जो जो पूछे गए हैं, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ डोंट वरी, आई हैव डन माय प्रिपरेशन। सर हाँ सर एक बात बताइए, जैसे इंटरव्यू हो रहा है, अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता, ठीक है, अगर उन्होंने पूछा, सर उस समय का बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, मतलब क्या करना चाहिए उस समय आपको क्या इफ यू लगता डोंट है नो द आंसर? ऐश्वर्य, आपको क्या लगता है अगर आपसे मैं बोलूँ, ठीक है, आप हाँ लॉ ग्रेजुएट हो ना? हाँ जी। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूँ कि चलो एक किरचॉफ लॉ लगा के दिखाओ इस मेश में या फिर इस सर्किट में, आप क्या बोलोगे? यू डोंट नो, सिंपली ना। अच्छा, तो उसपे मतलब मार्क्स तो नहीं कटता? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस से मतलब बोले नहीं पता तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो झूठ बताने से अच्छा है ना सच बताना। अगर आप अपनी टीम को गलत लीड कर रहे हो और आप गलत बता रहे हो, मतलब थिंक लाइक एन ऑफिसर। अगर आपने अपने देश को, अपनी टीम को धोखे में रख रखा है कि आप जो है वहां जाके मतलब झंडा ही गाड़ दोगे, और आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और इवेंचुअली सब लोग उसमें घायल हो जाएंगे, सब लोग को कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप जो है ना गलत काम कर रहे हो। तो उससे बेहतर है कि नहीं, वेट, यू विल मेक द अनदर स्ट्रेटेजी, आप और प्रिपेयर करोगे और अच्छा करोगे, ठीक है। तो सेम फॉर द इंटरव्यू। एक चीज वेरी क्लियर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि आप जो आंसर नहीं दे पा रहे हो उसके कुछ मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं या काट लिए जाते हैं, क्योंकि आप लाइव एग्जांपल आपके सामने है। मैं बहुत सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन से आंसर नहीं दे पाया था। इवन आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, कुछ क्वेश्चन थे अब उस टाइम पे मुझे नहीं याद आ रहे थे, तो आई जस्ट सिंपली सेड कि सर दिस टाइम आई कैन नॉट रिकॉल देम बिकॉज आई वाज नॉट इन प्रैक्टिस विद सच सो एंड सो फार्मूला, बट वंस आई विल सी इट आई विल फाइंड इट। तो दैट इज द वे आई थिंक एवरीवन शुड बी। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आप उसको उससे रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, यू कैन गिव दैट,
बट अगर आपको उससे रिलेटेड बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन यू हैव टू ब्लंटली से सॉरी सर। ओके। एक्सक्यूज मी Sir, सर, हाँ हाँ। सर ये uh, इंटरव्यू यूजुअली कितना लंबा चलता है, कितनी देर तक चलेगा? इट डिपेंड्स। बेसिकली जो अभी तक इंटरव्यू चलते हैं ना, वो 40 मिनट्स तक के चलते हैं, ठीक है, 40 मिनट 45 मिनट, कभी कभी मतलब लंबा भी खिंच जाता है। जैसे मेरे केस में मेरा दोनों बार इंटरव्यू जो था मतलब अराउंड 1 आवर चला था, मोर देन 1 आवर ही चला था। तो इसका कोई ऐसा मतलब सिंबल नहीं है कि बहुत लंबा इंटरव्यू चल रहा है तो आप हो जाओगे या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि अगर उसको लग गया है कि हाँ दिस गाय हैज पोटेंशियल उसके अंदर है, ही विल रैप अप विद इन 40 to 45 मिनट, बट 40 मिनट यू कैन एक्सपेक्ट कि इतना तो चलेगा ही। ओके, थैंक यू सर। हाँ, someone was asking something also. yes, sir. I have 3 questions. हाँ, ओके। Sir, first is that GD और GP में बहुत everyone is speaking so loud. तो चांस ही उसको कोशिश करते हैं बोलने की, बट आई फील कि सभी बोलते हैं तो सुन इज द GTO एबल टू हियर, क्योंकि इतना तेज सब बोलते हैं, नो वन इज Okay. गिविंग ईच अदर चांस। रोहन, जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट। हाँ, मैं हर एक चीज के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, हर एक चीज के ऊपर सब कुछ लिख रखा है। लेकिन एक आंसर तुमको अभी देना चाहूंगा कि यू आस्क कि जीटीओ सुन सकते हैं कि नहीं। देखो, जीटीओ की ट्रेनिंग जो होती है ना, वो सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है, सबसे लंबी, इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट से। जीटीओ इतना ट्रेंड होता है, इतना ट्रेंड होता है कि वो ब्लैक गॉगल्स लगा के, कान पे फोन लगा के, वो हर एक की बात नोट कर सकता है, हर एक की बात सुन सकता है, ठीक है। तुमको वहां परफॉर्म करना है, तुमको वहां पे लाइमलाइट में नहीं आना है। तुम अपने आप परफॉर्म करोगे, अपने आप लाइमलाइट में आ जाओगे। अगर तुम सोच रहे हो डेलिबरेटली कि हम ऐसा बोल के, ऐसा कुछ आंखें आंखें दिखा के कि जीटीओ को सुना दें, तो वो जीटीओ ये भी नोटिस कर लेता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ओवर शो हिमसेल्फ। तो यू डोंट हैव टू थिंक, ये सब आपको नहीं सोचना है, वो उसका हेडेक है। और लेट मी वेरी श्योर, एक एक जीटीओ मतलब मेरे कितने 13 अटेम्प्ट हो चुके अब तक। अब आई एम श्योर कि जीटीओ से गलती नहीं होती है। अगर उसने फेल किया है देन ही इज राइट, अगर उसने पास किया देन ही इज राइट। तो वो आप मत सोचो, ठीक है। ओके सर। यार वेरी ट्रेंड, यार वेरी ट्रेंड। ओके। सर बाकी तो यही क्वेश्चंस थे। एक तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन पीजीटी, तो व्हाट हैपेंस इज दैट माय मोरल goes down, and because of that my HGT is affected, and I feel that अब तो पूरा ही GTO खराब हो गया है सर। सो उसके लिए what should be done, how to have a mental stability? देखो, जीटीओ में कितने टास्क हैं रोहन? A lot of tasks. 9, ठीक है। एक टास्क तुम्हारा गया, पीजीटी मान लो, ठीक है। बाकी 8 बाकी हैं। बाकी 8 में भी मैंने बोला कि शुरुआत के जो 4-5 है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं, ठीक है, कोई नहीं, मान लो शुरुआत के हमने 4 ले लिए, 4 में से 1 तुम्हारा खराब हो गया, उसमें से 3 तो तुम्हारे पास है ना, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं होता है, देखो एक चीज कि कोई थ्रू आउट एकदम उसेन बोल्ट है कि शुरुआत से एकदम दौड़ता जा रहा है या फिर मतलब छक्के ही छक्के मारता जा रहा है। ऑब्वियसली यार, हर कोई ह्यूमन है, तो गलती होती है, कभी आप पीछे हो सकते हैं, कभी एक आगे हो सकते हैं। द वन थिंग इज गोइंग टू मैटर इज योर कंसिस्टेंसी। आप पीछे हो के भी अगर आगे आते हैं, देन यस, रोहन इज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। अगर एक बार आप पीछे हो के हमेशा हार जाते हैं, हार ही मान लेते हैं, ठीक है, देन रोहन इज अ कैंडिडेट मतलब जिसको नहीं रिकमेंड करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारी एग्जांपल है यार, सिंपल सोचो, एक चीज बताओ, वॉर देखो, मतलब देखो, लेट मी टेल यू, जो सोचना है ना, हमें एज एन ऑफिसर ही सोचना है। अब वॉर होती है, क्या इस बात की गारंटी हर वॉर जीतोगे? इंडिया ने कितने वॉर हारे होंगे? बहुत हारे होंगे यार। मतलब एक रिसेंट एग्जांपल चाइना का ही ले लो, हम चाइना से वॉर हारे कि नहीं हारे, लेकिन उसके बाद तो हमने तो फिर जान ही रहो क्या क्या कर रखा है। तो हारना जरूरी नहीं है, हारने के बाद लड़ना जरूरी है। तो ठीक है, पीजीटी गया तो गया, कोई बात नहीं। और पीजीटी में भी भाई 4 स्टेप होते हैं, आप एक स्टेप या फिर एक हर्डल में पीछे रह गए, 3 में आप आगे जाइए ना, किसने रोक रखा है, ठीक है। Yes sir, thank you. और ऐसा मत सोचो कि क्या बोलते हैं कि जब उसको मोराल को कैसे हाई करें उस टाइम पे। इसी वजह से मैंने सबसे पहली स्लाइड में बोला था, डू यू हैव इट इन यू? अगर आप में है ना, आप कर डालोगे, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। एक बार जब भूख लगती है ना, तो फिर कोई बात नहीं, जो मिलता है आदमी खा जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी, यू विल डू इट, ठीक। नाउ Okay. वी विल मूव टू द पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप आप कहीं भी जाओगे, कितनी भी मतलब चीज़ों को खोजोगे ना, आप कुछ चीज़ें बहुत पाओगे। ये उनमें से एक कॉमन है कि आपको 15 OLQs देखी जाती हैं, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। ये आप हर आर्टिकल में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इवन हर एसएसबी बुक में मिल जाएगा, और वहाँ पे एसएसआर्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, लिटरली मुझे उन 15 OLQs का तो नहीं पता है
क्योंकि मैंने उनको शायद एक बार ही पढ़ा होगा अपने इन अटेम्प्ट्स में। बट हाँ, मुझे इतना जरूर पता चल गया कि ये 4 चीजें जो है ना, ये 4 चीजें, ये जो है ना, ये कोर ऑफ द एसएसबी है। यही 4 चीजें अगर आपके अंदर हैं, 100 नहीं 200% यू विल गेट इन। ये कोर है एसएसबी का, जो मतलब ये मैंने खुद से अपने आप से बना रखा है कि ये चीज अगर आप में है, देन ऑब्वियसली यू विल क्लियर। तो एक-एक चीज को मैं थोड़ा मतलब डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आपको बीच में कोई भी ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क, ओके? देखो, पहली चीज़ है लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच हर एक टेस्ट में, और ये ऐसा नहीं है ये जीटीओ या इंटरव्यू या फिर साइकोलॉजी की बात है, ये तीनों टेस्ट की बात है। लॉजिकल अप्रोच शुड बी एवरीवेयर। आप कोई भी प्लान ऑफ एक्शन है, अगर उसके पीछे लॉजिक नहीं है ना, वो सिर्फ बेवकूफ़ी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है? साइकोलॉजी में एक टैट आई। टैट में एक ऐसा है कि एक इंसान जो है मतलब गाँव वाला बैकग्राउंड है, खेती कर रहा है, ठीक है? और एक लड़का बना हुआ है, वो उसके आस-पास कुछ खड़ा है, कुछ बात कर रहा है। देखो, लॉजिकल सोचो, नॉर्मली मैंने जो देख रखा है, लोग क्या स्टोरी बनाते हैं कि एक लड़का था, इंटरमीडिएट में था, ठीक है? वो क्या करता है, जाता है देखता है कि उसके यहाँ मतलब खेती में बहुत उल्टा-सीधा हो रहा है, या फिर अपनी फैमिली में देखता है कि अच्छे से खेती नहीं हो पा रही है, ठीक है? उसके फादर को टेक्निक-वेक्निक पता है, उसके फादर जो कि मतलब किसान है, तो वो जाता है बीएससी करके आता है, ठीक है? या फिर कुछ बुक्स पढ़ के आता है और वो अपने फादर को खेती करना सिखा देता है। कितने लोग को लगता है इसमें कुछ लॉजिक है? मतलब एक किसान को जो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें दी है, उसको तुम नई टेक्निक ज़रूर बता सकते हो, मेबी। लेकिन एक 10+2 लेवल का लड़का 18 से 20 साल का बहुत रेयर होगा कि वो उसको खेती करना सिखा दे। मतलब इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ टेल मी। एनीवन? मतलब आपको लगता है ऐसा कोई लॉजिक है इस बात में कि कोई 12th पास लड़का जाके किसान को सिखा रहा है खेती? एनीवन? नो सर। नहीं है ना? नो सर। ये देखो नो वही सर, चीज़। हाँ, नो तो सर। यही चीज़ है। आपको ना लॉजिकल रहना है अपनी जगहों पे। अगर आप इलॉजिकल होते हो, वहीं से सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू होती है। सेम जीटीओ में। जीटीओ में देखो, मान लो टास्क बन रखा है, ठीक है? ऐसे कि एक स्टेज यहाँ है, एक स्टेज यहाँ है, और आपको लग रहा है कि क्या बोलते हैं, आप एक प्लैंक लगाओगे, उस प्लैंक को लगा के आप पहुँच जाओगे, ठीक है? वहाँ पे आप कुछ लोग इलॉजिकल होके बोल रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक रस्सी बाँध दो और रस्सी के ऊपर सब चल के चले जाएँगे। मतलब ये कोई सेंस नहीं है ना इस बात का, ठीक है? सेम इंटरव्यू में आप कुछ पूछा आपसे, लेट मी टेक यू वन एग्जांपल। इंटरव्यू में पूछता है कुछ भी आपसे, मान लो अननोन सिचुएशन में डाला कि ओके रोहन, आप जो है क्या बोलते हैं कहीं जा रहे हो और आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी कार जो है रास्ते में रुक जाती है, आप क्या करोगे? ठीक है? एक लॉजिकल इंसान होगा, वो क्या करेगा? अरे भाई, पहले तो उतर के देखेगा ना, उतर के देखेगा ऑब्वियसली कि क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ का सिंपल थंब रूल है, एक बार क्या करो, ऑफ करके ऑन करो, वही करेगा, ठीक है? और क्या करेगा? देखेगा कि कार ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गई। ये मतलब लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। वहीं आप अगर ओवर ज़्यादा कर देते हो चीज़ों की, व्हाट ही विल डायल एम्बुलेंस, ही विल डायल कि आरटीओ ऑफिस को सीधे कॉल कर देगा, दैट विल कम लेटर पार्ट ना। और क्यों ऐसी सिचुएशन को अपने आप में हैवी कर देना कि कार एकदम खराब ही हो गई, वो आरटीओ को डायल कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। लॉजिकल रहो, लॉजिकल आदमी यही करेगा, पहले खुद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। दैट इज द लॉजिकल अप्रोच। ओके, द सेकंड वन इज कॉन्फिडेंस एंड ट्रुथ। अभी मुझसे किसी ने पूछा था, शायद गंगा ने पूछा था, किसने पूछा था कि अगर जिन चीजों का नहीं आता, ऐश्वर्या ने पूछा था कि जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं आता उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है? और रोहन ने पूछा था कि क्या बोलते हैं, अगर हमारा पीजीटी खराब चला गया तो हम ऐसे कैसे मोरल को हाई रखेंगे? एम आई राइट और नॉट? यस सर। हाँ, तो देखो, अगर ट्रुथ और कॉन्फिडेंस, पहली बात तो इस एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, पता है? अगर आपके अंदर ट्रुथ है ना, ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कैसे? जैसे ऐश्वर्या ने पूछा कि सर इसका क्वेश्चन मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो ऐश्वर्या का ये ट्रुथ है कि दैट ही डू नॉट नो द आंसर, देन ही कैन से कॉन्फिडेंटली यस सर आई डू नॉट नो द आंसर, ठीक है? ऑब्वियसली अगर वो ट्रुथफुल नहीं है, अगर वो वहां पे झूठ बोलने की कोशिश करेगा, ही विल बी इन द ट्रबल। अब वो एक बार ट्रबल में पड़ गया ना, तो इंटरव्यूअर भी इतना ट्रेंड होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को ना मतलब समझ लो ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है? तो अगर आप ट्रुथफुल हो अपनी जगह, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा ही होगा। और अगर आपके अंदर वाइस वर्सा है, कॉन्फिडेंट हो तो आप सच ही बोलोगे, ठीक है? तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? और ये जो मैं अगेन आई एम सेइंग कि ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ़ एक टास्क की नहीं, ये चारों टास्क की बात है। चाहे वो जीटी हो, जैसे रोहन ने बोला था कि सर क्या करेंगे?
तो देखो तुम ट्रुथफुल हो, तुम रोहन तुम्हें पता है कि यू गेव योर बेस्ट, बस ये मतलब मैटर ऑफ टाइम था कि वो टास्क तुमसे नहीं हो पाया, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो, ये तुम्हारा ट्रुथ है, तो ऑब्वियसली यू विल डू द नेक्स्ट टास्क विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो दैट्स व्हाई यू शुड हैव एटलीस्ट टू, मतलब ये दोनों चीजें तो होनी ही चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है अ जेंटलमैन। देखो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब अ जेंटलमैन और अ जेंटल वूमन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इट इज सिचुएशन बेस्ड। हाँ इतना आई कैन से कि एक जेंटलमैन वो होता है ना जो हमेशा चीजों को अपने नजरिए से ही नहीं दूसरे के नजरिए से भी देखता है, ठीक है ना, एक जेंटलमैन की खासियत ये होती है। सो वी विल डिस्कस कि जेंटलमैन कैसे मतलब होते हैं, या फिर जेंटलमैन कैसे एक्ट करता है। आई थिंक दैट एवरीवन, सब कोई जेंटलमैन ही है, बस वो मैटर ऑफ टाइम है कि आप कहाँ पे कैसे करते हो। अब फोर्थ वन इज भाई, एक हंसमुख पर्सनैलिटी नहीं है ना, देन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ट्रबल होगी। अब क्या बोलते हैं, सबने एक वो कोटेशन तो पढ़ रखी होगी ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पढ़ी है सबने? Yes. बताओ, मेरे पास एक ही बुक की 2 कॉपीज हैं, ठीक है, एक का कवर एकदम ऐसा चीथड़ा मच रखा है, दूसरी वाली एकदम नई है, वो एकदम नई वाली स्मेल आ रही है उसमें से, ठीक है, और आपको बोला गया आपको ये पिक करने को, कौन सी पिक करोगे यार, बताओ ऑनेस्टली। Obviously, the new one. हाँ, नई वाली करोगे ना, नई वाली करोगे जो चार्मिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, तो ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, नॉर्मल कैंडिडेट क्या होता है ना कि दे टुक द एसएसबी एज अ प्रेशर, जो मैंने भी कर रखा है कि हर टाइम जो है ना लगता था कि ये मेरे को बस मतलब जज ही कर रहा है, बट वंस यू विल टच दिस थ्रेशोल्ड है ना कि वहां तुमको ये जज कर रहे नहीं, तुमसे बस कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स पूछने बैठे हैं, देन ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि बस एक ही इलाज है, अगर नहीं आता है तो आपका हसमुख चेहरा ना वो अपने आप में इलाज है। जैसे ऐश्वर्या ने कहा कि मुझे नहीं आता है इस चीज का आंसर, देन देखो देयर आर 2 वेज टू टैकल दिस। एक मैं ऐसे बोलूं, सॉरी सर आई डोंट नो, एक मैं बोलूं सॉरी सर आई डोंट नो बट आई विल गेट टू नो। आप यू कैन सी द डिफरेंस। सेकंड वन इज शोइंग कि हाँ दैट दिस गाय इज रियली जेन्युइन, और फर्स्ट वन ऐसा शो हो रहा है कि यार इसकी तो बस मतलब हवा निकल गई है, ठीक है ना। तो एक हसमुख चेहरा, लाइवली पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर आपके अकॉर्डिंग कैसे लाइवली पर्सनालिटी को डेवलप करा जा सकता है? बिकॉज मेरे केस में तो आई बिलीव दैट व्हेन आई गेट नर्वस और मेरा कोई एक दो टेस्ट खराब चले जाते हैं, देन आई गेट सो लो और ऐसा लगता है अब तो एसएसबी खत्म ही हो गई। ओके देखो रोहन, मतलब फिर से मैं उसी वो मेरी फेवरेट स्लाइड है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन, डू यू हैव इट इन यू। देखो एक बार सोच लिया ना दोस्त कि करना ही है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो गए ना, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हो ही रहे हो, हम भी हो रहे हैं, मैं भी कितनी बार मतलब 11 बार फेल हुआ। तो एक चीज मैंने सीखी कि यार जो वर्स्ट पार्ट हो सकता है, जो वर्स्ट रिजल्ट हो सकता है, वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। बहुत ज्यादा क्या हो गया, आप फेल हो गए, मतलब आपकी जान नहीं जाएगी एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपको इतना पता है कि आप इससे बुरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, और उस कंडीशन में आपको बोल दिया जाए कि ठीक है यू हैव टू डू नथिंग जस्ट टू स्माइल, तो उसमें क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ना, क्योंकि यू ऑलरेडी नो द रिजल्ट। और एक ऐसी चीज जिसको करने से आपका रिजल्ट और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उस चीज को करने में कोई बुराई है क्या? हंसने में क्या पैसा लगता है भाई? यस सर। नहीं, हंसने में क्या पैसा लगता है, बिटकॉइन थोड़ी लग जाते हैं 8-10 ठीक है, यू हैव टू यस जस्ट सर। स्माइल ना। तो मतलब राइट। स्माइल करने में मुझे नहीं लगता कुछ कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम और हम दोनों डिफरेंशिएट तभी होंगे ना जब हम अननोन सिचुएशन में होंगे। जब अगर मैं तुमसे पूछूं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, दोनों का आंसर सेम है, मैं क्या जज करूंगा, सामने वाला क्या जज करेगा, मतलब वो इक्वल मार्क्स देगा। लेकिन अननोन सिचुएशन में, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती है, उसमें इफ यू आर काम एंड स्माइलिंग, यस सर आई विल डू सच काइंड ऑफ थिंग, आई विल सर चेक, आई विल टर्न ऑफ द इंजन, आई विल अगेन स्टार्ट। तुम ऐसे बोल रहा हो, मैं बोलता हूँ कि सर मैं तो मम्मी को कॉल कर दूंगा, पापा को कॉल कर दूंगा, दोस्तों को बोल दूंगा कि वो जेसीबी मशीन लेके चले हैं, ठीक है टेंशन में मैंने बोल दिया। तो ऑब्वियसली हो सकता है मेरा वाला लॉजिक ज्यादा सही हो, कार तुम्हारी बने ही ना, लेकिन जो तुम्हारा आंसर देने का तरीका है ना, वो तुम्हारी कार को बना देगा, समझे? So, how would you recommend to develop such a quality? Because क्या होता है पिछले एसएसबी में भी the officers ask you something which is very different. For example, conference में सर ने मुझसे पूछा था कि what is a new quality you feel that other candidates
think about you this time. So I told sir I feel that I am friendly. तो बोलते वो तो तुमने self description में लिखा ही है that you're friendly. This is not a new quality. So I wasn't able to think on the spot. So ये कैसे sir on the spot वाली quality how do you think develop हो सकती है? देखो रोहन, सच बताएं, मतलब मेरा ही एक फ्रेंड था, बनारस में थे हम लोग, ठीक है, उससे भी ये काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, फिर उससे ये पूछा कि अच्छा बताओ व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग दैट यू हैव डन, क्योंकि उससे पहले पूछा था कि तुम्हें कैसी लाइफ पसंद है, उसने बोला सर एडवेंचरस पसंद है, उससे पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग दैट यू हैव डन, उसने बोला कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मतलब कैन यू एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ आंसर, बट ही वाज स्टिल गॉट रिकमेंडेड, पता है क्यों? क्योंकि कॉन्फ्रेंस जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट तो होता ही होता है, लेकिन वो मतलब एट द एंड होता है, वो एक क्वेश्चन, वो एक आंसर या फिर एक आंसर ना दे पाना आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन नहीं डिसाइड करता है। इसी वजह से इतने सारे टास्क होते हैं, इतने सारे टास्क होते हैं यार, इतने सारे टास्क इसीलिए रखें कि एक इंसान को अगर कहीं पे मतलब उनको भी पता है कि हर कोई हर जगह परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ठीक है, इतने सारे टास्क है कि एक जगह नहीं तो दूसरी जगह करेगा यार, 10 जगह करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एट दैट टाइम, ठीक है, देन यू कैन आस्क। और देखो एक चीज और बताओ रोहन, मतलब बहुत ऑनेस्टली, थोड़ा अगर तुम चंट हो ना, देन ऑब्वियसली यू विल मेक इट। चंट इन द सेंस निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि तुम मतलब बातें, ठीक है, वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि और अदर क्वालिटी क्या है तुम्हारे अंदर, तुमने बोला कि सर मैं फ्रेंडली हो गया हूँ, उसने बोला ठीक है तुमने एचडी में ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ और कुछ नया बताओ, ठीक है, तो बोलना कि सर एचडी में मैंने लिख रखा था तब जब क्या बोलते मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिल के आया था, यहाँ तो मुझे सारे नए फ्रेंड मिले ना, स्टिल आई गॉट सो मच फ्रेंडली, मैं इतनी कम टाइम में फ्रेंडली हो गया, मतलब दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। चीज वही है, कहने का तरीके अलग है, आपने ऐसे कह दिया, ठीक है, दूसरा ये आप बोल दो कि सर मैं फ्रेंडली तो था दैट आई नो, बट अब मेरा जो फ्रेंडली होने का ड्यूरेशन है ना, वो टाइम पीरियड वो बहुत कम हो गया, मैं कम टाइम में फ्रेंडली हो जाता हूँ, ठीक है, दैट इज मतलब यू कैन हैंडल, आपको आंसर आपके पास ही है, यू हैव टू फाइंड इट। सर वो प्रेशर में सोचा ही नहीं जाता जो आई नो यार, आई एम नॉट यू नो डिस्कार्डिंग दैट फैक्ट कि वहाँ प्रेशर में बहुत एकदम काम होके कर लोगे, लेकिन कम से कम एक सोच की बात है ना यार, सोच की बात है, अगर तुम सोच के जा रहे हो कि यार ठीक है आज मैं ना हंस के दूंगा, अच्छे से दूंगा, ठीक है, तुम अपनी 60% जर्नी में हंस रहे हो, 40% में तुम रो रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारा 60% तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि तुम 100% अच्छे एकदम लॉजिकल जेंटलमैन, लॉजिकल कॉन्फिडेंट लाइवली पर्सनैलिटी सब कर लोगे, नहीं, बट this is the thing that if you are able to perform in the major chunk of your selection then it is it यार, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ओके सर। तो वो देखो, और एक चीज और है, ऐसी कोई दवा नहीं है यार कि खाया और हंसी आ गई, ठीक है, खैर N2O गैस होती है लेकिन वहां पे वो यूज नहीं कर सकते हो, ठीक, तो एक ही चीज है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, और दूसरी चीज की अपने ट्रुथ, अपनी पर्सनैलिटी और अपने स्ट्रेंथ को जानो। मे बी रोहन, इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर देन इट इज श्योर कि तुम किसी और चीज में बहुत अच्छे होगे जिसमें मे बी मैं ना हूँ या फिर कोई और ना हो, ठीक है ना, तो इफ यू विल फाइंड कि तुम ऐसे एकदम मतलब मतलब बिना ऐसे एक लाइवली पर्सनैलिटी नहीं हो के भी कुछ चीजें हैं जो तुम में किसी में नहीं है, देन इट इज ओके यार, ठीक है, बट इफ यू कैन इनकैलकुलेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स देन ऑब्वियसली यू शुड, द पॉइंट वाज दैट, ओके। यस सर। हाँ Sir, हाँ sir, I have a question. Sir, ठीक है, आपने कहा ना कि इंटरव्यू में तुम्हें जो सही लगता है, जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम कहो, बिल्कुल, बट व्हाट इफ माय राइट इज रॉन्ग फॉर हिम, फॉर द इंटरव्यूअर, जो मैं कह रही हूँ वो बाकियों के लिए गलत हो, बट फिर भी मैं कह रही हूँ उस कॉन्फिडेंस से कि हाँ ये सही है, तो तब क्या मतलब कैसे फेस करूंगी उसको फिर? ये राइट और रॉन्ग डिसाइड करने वाला कौन होता है? लेट मी टेल, राइट और रॉन्ग डिसाइड करने वाला कौन होता है? इंटरव्यूअर या आप? पता है क्या कर रहे हो आप ना ओवर कैलकुलेट कर रहे हो, आप ये कैलकुलेट करके चल रहे हो कि जो मैं बोलूंगी या जो मैं बोलूंगा वो सामने वाले बंदे को सही नहीं लगेगा, वो उस पर क्वेश्चन ही करेगा, ठीक है, या आप अज्यूम करके चल रहे हो। और इवन लेट मी टेल यू वन थिंग, वो प्रिटेंड भी ऐसा करेंगे कि नो आई एम नॉट यू नो एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, वो आपको बिल्कुल बोलेंगे भी, ऐसा ऐसा फील भी कराएंगे, लेकिन जो चीज सही है उसको झुटला नहीं सकते हो ना, ठीक है। Yes. And Anushka, just wait for a little bit, few minutes, yeah, please. I know that you people are very much interested, but please
you wait for few minutes. I have mentioned each and everything. ठीक है, you are just unboxing the secrets. So let me move to the next slide. ओके जिसका ये फर्स्ट टाइम है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे ठीक है. So it is your first time or last time, doesn't matter. You will, you know, escape from this. What is this? This is ये फंदा है ना, ये फंदा जो कंफ्यूजन का है, ये जो फंदा सेल्फ डाउट का है, और ये जो फंदा आपने खुद से प्रिपेयर करके खुद के गले में डाल रखा है, इससे आप पक्का एस्केप हो जाओगे. ठीक है, तो डू नॉट वरी वेदर इट इज योर फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम. ठीक है, अब देखो ये स्क्रीनिंग के डूज एंड डोंट्स है. ठीक, सबसे पहला डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन. देखो स्क्रीनिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन, बिकॉज यही आपका नेक्स्ट डे मतलब सेकंड स्टेज डिसाइड करता है. उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन. अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. तो अगर आप डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करते हो तो वहीं आपकी आधी समस्या हल हो जाती है. ठीक है, क्योंकि जब स्टोरी लिखने की बारी आएगी, जैसे पुरानी वाली स्टोरी थी, उसमें सबने देखा कि हाँ कुछ कार है क्या है, बट किसी एक ने ऐसी चीज देख ली, मान लो किसी ने फर्स्ट एड बॉक्स उसमें देख लिया. ठीक है, तो ऑब्वियसली कि हाँ वो फर्स्ट एड देख रहा है, वो उसने फर्स्ट एड बॉक्स देख लिया, तो ऑब्वियसली कि हाँ कुछ रेस्क्यू कर रहा है या फिर कुछ उसको क्योर दे रहा है. ठीक है, अगर वो ये सारी चीजें अपनी स्टोरी में लिखेगा, ये सारी चीजें अपने नरेशन में बोलेगा, ऑब्वियसली इट विल बी अ गुड इम्पैक्ट एंड मोर इट विल मेक इट मोर रियलिस्टिक, क्योंकि ही नोटिस द ईच एंड एवरी डिटेल. ठीक है, तो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन इज फीलिंग, एक्सप्रेशन एंड थॉट. देखो स्टोरी अभी किसी ने बोला था, शायद गंगा ने बोला था कि हम लोग एक स्टोरी बनाते हैं, उसमें एक हीरो रख सकते हैं कि दो हीरो रख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, एक्सप्रेशन एंड थॉट. अभी आगे मैं आपको कुछ सैंपल पिक्चर दिखाऊंगा, वहां पे एक इंसान की फीलिंग मैटर ही नहीं कर रही, वहां पे कलेक्टिव फीलिंग मैटर कर रही है. वहां पे कई सारे एक्सप्रेशंस हैं और वहां पे कई सारे थॉट्स हैं. ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस लीड्स टू द डायरेक्शन ऑफ योर स्टोरी. अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू फील द पर्सन, इफ यू आर नॉट एबल टू फील द पिक्चर, अगर जैसे पिक्चर में हैवॉक बचा रखा है कि कुछ टेंशन है बहुत, और वहां पे आप लिख रहे हो कि ये पिकनिक की स्टोरी है, जाते हैं फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं, डू यू थिंक दैट इट इज मेकिंग एनी सेंस? नहीं. सेम फॉर द एक्सप्रेशन एंड थॉट्स. ठीक है, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट. द थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव अप्रोच. पॉजिटिव अप्रोच ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तो आप लोगों ने टीवीएफ वाली सीरीज में देख ही लिया होगा ना पॉजिटिव अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेम गोज हियर यार, कि स्टोरी में भले निगेटिविटी भरी हो, भले आपको लग रहा हो कि यहाँ पे टेंशन ही टेंशन है, तो आपने टेंशन देख के कुछ नया काम नहीं कर दिया. बट अगर इफ यू आर एबल टू स्टीयर दैट स्टोरी इनटू अ डायरेक्शन वेयर द एंड इज गुड, वेयर द पॉजिटिविटी कम्स आउट, देन यस इट मेक्स अ मैटर. ठीक है ना. एंड द थर्ड वन इज क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन विद प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट. देखो कौन पूछ रहा था अभी कि सर जीडी में मेरे को ऐसे इतने सारे लोग बोलते हैं, अभी आएंगे वहां पे भी, लेकिन क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन, दे विल गिव यू 1 मिनट फॉर द नरेशन. अगर आप उस 1 मिनट में नहीं हो, मतलब बोल पाते हो, तो दे विल से नेक्स्ट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी, जस्ट नेक्स्ट. तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर व्हाइल नरेटिंग योर स्टोरी. और प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, देखो सिंपल है. अगर मैं ऐसे अभी तो जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्क्रीन पे देख के बोल रहा हूँ, यही अगर आप सब लोग इमेजिन करो एक ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, और मैं सबकी आंखों में देख के बात करूँ, ओके सो दिस वाज लाइक दैट एंड दिस वाज लाइक दैट, ऑब्वियसली इट गिव्स अ मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट सभी के ऊपर कि हाँ दिस पर्सन इज टॉकिंग टू मी. देन दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि एक प्रॉपर आई कांटेक्ट होना इज वेरी नेसेसरी. द थर्ड वन इज अ जेंटल लिसनर इज ऑलवेज असर्टिव. देखो जेंटल लिसनर, इफ आई एम लिसनिंग to you like some Ganga or Shreya, someone is speaking, ठीक है, he or she is speaking in front of me, I am looking here and there, then what will be the impact? That person will assume कि हाँ ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है. But if I'll look into his or her eyes and I will obviously assert हाँ okay this is like that, and obviously it gives not confidence only to that person, also for the person who is listening कि हाँ यार इसकी बात मुझे समझ में आई, इसने बड़ी लॉजिक की बात की है. So you have to be very gentle listener and as well as always assertive. आई नो दे रियल सिचुएशन में क्या होता है ना, रियल सिचुएशन में जब जीडी हो रही होती है, एवरीवन इज कैलकुलेटिंग बिहाइंड हिज माइंड कि अब मेरे को नेक्स्ट क्या बोलना है, और हर कोई वेट कर रहा होता है कि जब ये खत्म करें तब हम तुरंत उसके पॉइंट के बाद हम बोलना शुरू कर दें. लेकिन ऐसे हर कोई वेट कर रहा होता है. ठीक है, ऐसा मतलब बहुत रेयर ही होगा कि उसको पता होगा कि मेरे को इस टाइम पे पॉइंट मिलेगा, हर कोई वेट करता है. लेकिन एटलीस्ट इफ यू आर नॉट मतलब लिसनिंग, अगर आप अपने मन में कैलकुलेट ही कर रहे हो कि आपको क्या बोलना है, दैट इज अ गुड थिंग, बट एटलीस्ट यू कैन एक्ट ना कि हाँ ओके आई एम लिसनिंग टू हिम. आप पूरी बात नहीं सुन रहे हो पर आपने उसका एक क्रिस्प एंड क्लियर
उसका एसेंस ले लिया, then obviously you can nod your head and simply say हाँ yes I have listened. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. The third one is a GD is a game of quality, not quantity. आप कितनी बार बोलते हो that doesn't matter, but what you speak that makes a matter, that makes a huge difference. क्योंकि क्वांटिटी की बात की जाए, मैं 3 से 4 बार बोल सकता हूँ अगर मैं हर बार नॉनसेंस बोल रहा हूँ, लाइक फॉर द स्क्रीनिंग। अब मैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक बस यही बोल रहा हूँ, फ्रेंड देयर आर 4 कैरेक्टर, देयर आर 3 कैरेक्टर, देयर आर 5 कैरेक्टर, देन इट डजंट मेक सेंस। ऑल्दो मैंने 3 बार बोला, लेकिन इस क्वांटिटी का मुझे मतलब नहीं। बट if I am moving towards a conclusive direction कि okay friend, we have decided that there are 4 or 3 characters, now we will move towards the theme, as many of you have seen that the theme relates to the ruler background, so our story will be go like that. देखो इसमें लॉजिक भी है कि हाँ उस बंदे ने देखा कि हाँ इसमें रूलर बैकग्राउंड था, सबका उसने कलेक्टिव रिस्पांस भी लिया कि हाँ ठीक है 3-4 है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, देन दैट इज द क्वालिटी व्हाट आई ट्राइंग टू से। एंड मोर यू ऑब्जर्व बेटर यू डिस्कस। आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा डिस्कस करोगे। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट मी टेल यू। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो अपनी बात को बस प्रूफ करने में लगे होते हैं, ठीक है ना। जब तक आप लॉजिक और एग्जांपल से अपनी बात को प्रूफ नहीं करोगे, वो जस्ट एक नरेशन हो जाती है। तो लॉजिक और एग्जांपल होना बहुत जरूरी है, और उसके होने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे उस स्टोरी में मान लो क्या बोलते हैं, एक जीप दिख रही थी, ठीक है, जीप दिख रही थी, लेट मी टेक टू यू, हाँ उस स्टोरी में एक जीप जैसी दिख रही थी। अब किसी ने बना दिया कि भाई जो है बाढ़ आई हुई है, या फिर किसी ने बना दिया कि चलो खेती पे बनाते हैं। नॉर्मली लोग करते हैं, जो लोग पहली बार गए उन्हें शायद नहीं पता, पर जो लोग जा चुके हैं उनको पता होगा। नॉर्मली लोग कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके बना देते हैं कि खेती कर रहे हैं सब लोग, और इवन कई लोग उससे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। लेकिन इफ you are the person who is saying कि friend I think that we have clearly seen there is a vehicle, हाँ, so I think that it will make a story which is basically related to मतलब कुछ भी आपका जो थीम है, एक्सीडेंट कुछ भी है, तो it will make sense ना। ऑब्वियसली ये लॉजिक होगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू डिफरेंशिएट। और द लास्ट वन इज अ लीडर में ड्रॉप हिज आइडिया बट नेवर लीव्स हिज टीम अगेन। अब ऐसी सिचुएशन आती है कि 17 के ग्रुप में 16 लोग जो है ना, सबने डिसाइड कर लिया कि भाई हम स्टोरी एग्रीकल्चर पे ही बनाएंगे। आपका एक धर्म था कि आप अपनी बात को रख रहे थे एग्जाम्पल से, आप अपनी बात को लॉजिकली रख रहे थे कि हाँ यार नहीं, हमने पिक्चर में व्हीकल देखा, सो स्टोरी शुड बी गो लाइक दिस एंड दैट। बट एट द एंड दिस इज अ टीम गेम ब्रो, you cannot leave your team and move ahead. You have to be with your team. That's why sometimes you have to drop your idea. That is the gentleman, that is the one of the quality of a gentleman. Okay ठीक है, majority wins ना। अगर सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम एग्रीकल्चर पे ही बनाएंगे, तो आई एम नॉट, इफ आई एम सेइंग कि नहीं तुम 16 अलग बनाओ, मैं तो भाई उस पे ही बनाऊंगा क्योंकि मैंने कार देख ली, देन आई एम नॉट द राइट पर्सन, ठीक है। अब कोई इस बात को ये भी कह दे कार नहीं ट्रैक्टर था, तो मेरे पास पॉइंट नहीं रहेगा ना। तो इट इज बेटर वो स्टेज तक पहुंचने से पहले यू फील द ग्रुप कि हाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, अकॉर्डिंग टू यू गिव योर पॉइंट्स, ठीक है। So you can drop your idea. There is nothing bad in that. I have done it. That's why I'm saying. But never leave the team. Group को नहीं छोड़ना है. Okay. So this was the part which was, for your screening. Now we will move to the next part. That is your observation part. So this is a picture that will be shown to you for 30 seconds. So each and everyone, please watch the picture carefully. I will give you 30 seconds. And I will ask some questions, or whoever want to volunteer, he can give some. You guys are watching now? Yes, sir. Yes, sir. See it for 30 seconds. Yes. Okay, I think 30 seconds is done. So anyone who want to volunteer and describe or tell the picture, or just say whatever he or she have observed. Anyone? So, according to me, I can write about the child labor. Okay. That the people are playing, people are gambling, and there is a child who is working. Okay. So I'll help him. help करूँगी उसकी. Simply. Great. Okay. Anyone? Yes, sir. Yes. Sir, according to me, there were 4 people, and
after a very hard work of very hard working day from their agricultural labor, they all meet together. They all are cousins basically, and so they are all playing cards and doing fun after in the evening after all the hard work, and they are also teaching their younger cousin how to play the cards. Okay. Anyone? Sir, according to me, I believe that these are four employees, and after a long day of work, one has organized a party for every one of them, and he has included games, and he has also cooked a few meals for everyone, and he's hosting a party for a celebration of the project which has been completed by all of them, and it has also been included by it has also been accompanied by his child. So this is the story, I believe. Okay, Rohan. So I Anyone? have one point, Sir. like during pandemic situation, like to सारी negativity side रखने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक फैमिली साथ में गेम प्ले कर रही है, ताकि जो फैमिली के हेड हैं, जैसे कि वो अपना ऑफिस के कामों की वजह से प्रेशर में है, तो उस चीज को साइड रखने के लिए और जो बच्चा है वो अपनी स्टडीज के लिए को एक बार के लिए साइड रखने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं. Okay. Sir. May I know your the last speaker? What was the name? So my name is Divya. Okay. Okay. सर मैं आए. Yes, sure. हाँ सर, अकॉर्डिंग टू मी सही मतलब दिवाली का समय मतलब चल रहा है और सब दे आर प्लेइंग कार्ड्स. वन ऑफ देम इज फादर ऑफ द चाइल्ड एंड अदर टू आर द ब्रदर्स. दे आर लाइक फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड बिकॉज यू कैन सी अ सिगार इन वन ऑफ द पर्सन हैंड एंड ही स्मोकिंग सिगार एंड मे बी सर गर्मी का समय क्योंकि वन ऑफ देम सर शर्ट का बटन खोले हुए, तो सर मे बी दे आर सिटिंग इन एसी रूम एंड प्लेइंग तीन पत्ती टाइप्स. Okay. ठीक है. So may I? हाँ बिल्कुल. Sir, I think sir, this is a family photo and everybody is playing cards, and that little child, he is curious that what they are playing and how they are playing, so that's why he is there and seeing them playing cards. Okay. So may I? बिल्कुल. So actually, I thought they are like kidnappers who kidnapped that little child, and because they are smoking cigarette and playing cards, so I thought they are kidnappers and they kidnapped that child. So मैं इस बेस पे स्टोरी बनाऊंगा. Fine. So okay, I think that you all are good observers. Let me tell you and one by one. Anushka told about the child labor. If I'm right, please. Yes, sir. Child labor. Okay, that is a acceptable thing. देखो, let me tell you one thing very clearly. I think that someone's mic is on. Please mute. हाँ, देखो एक चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब ब्रह्म सत्य है कि यही सत्य है, ऐसा ही करना है. बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा मतलब जर्नी रही है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ. ठीक है, यू मे बी राइट एट योर प्लेस, लेकिन लेट मी क्लियर यू. अनुष्का ने बोला चाइल्ड लेबर है. दैट इज एक्सेप्टेबल आइडिया बिकॉज ऑब्वियसली मतलब ये लोग खेल रहे हैं और मतलब दे आर नॉट लुकिंग सच काइंड ऑफ अ गुड पर्सन. क्यों? लेट मी टेल यू. ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग पीने से कोई गलत हो जाता है, बट द थिंग इज, आपको क्या लगता है एक बच्चे के सामने स्मोकिंग करना कहाँ तक सही है? इफ एनीवन थिंक्स इट इज राइट, प्लीज लेट मी नो. अगर किसी को भी लगता है ये सही है, आई एम नॉट सेइंग No, sir. मतलब इतना तो सब लोग एग्री करोगे ना कि यार सिगरेट तो नहीं पीना चाहिए एटलीस्ट बच्चों के सामने. कार्ड तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऊनो हो सकता है और ऐसा 3 पत्ती हो सकता है जिसने भी बताया. तो स्मोकिंग इज द बैड थिंग. ठीक है, ये किसी बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए. तो जितने लोगों ने भी इस स्मोकिंग वाले गेम में बच्चे को भी इंक्लूड कर लिया है, तो आई थिंक दैट दिस इज नॉट द जेंटलमैन. जो मैंने 4 पॉइंट बोले थे ना, उसमें से एक था ना कि अ जेंटलमैन और अ जेंटल वुमन. देयर यू नीड सम मॉडिफिकेशन. वहां पे आपको स्टोरी को ऐसे मोल्ड करना पड़ेगा कि आप कुछ भी बना सकते हो. आप उस बच्चे को हीरो बना सकते हो, आप इनमें से किसी को हीरो बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. मैं मतलब लास्ट में एक अपनी भी इसको देख के मुझे जो दिमाग में आ रहा है, मैं भी अपनी एक स्टोरी बनाऊंगा. ठीक है, तो जितने लोगों ने जैसे ऋत्विक ने किया कि कजन से कार्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है. लेकिन ऋतिक, यू मिस दैट पार्ट. ये स्मोकिंग कर रहा है और ऐसे बच्चे के सामने स्मोकिंग करना इज नॉट अ गुड थिंग. You have to also notify that problem.
इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत एकदम चिल आउट सिचुएशन है। चिल आउट सिचुएशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑलवेज भाई कार्ड खेल रहे तो मौज ही कर रहे होंगे, लेकिन मौज करते करते बच्चे को तो मतलब इनकी इसको तो सजा दे रहे हैं ना। तो ये एक प्रॉब्लम है दैट यू हैव टू नोटिस व्हाट आई हैव रिटन। देखो मैंने क्या लिख रखा था, फीलिंग, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। यहाँ पे फीलिंग वाला पार्ट मिस हो गया किसी से, कि उसने ये नहीं देखा कि एक बच्चे के साथ जो है ना ऐसा स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। रोहन ने बोला कि ऑर्गेनाइज सेलिब्रेटिंग और कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगेन रोहन, सेम फॉर यू ना, समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, दिव्या ने बोला था कि वो फैमिली गेट टुगेदर है, पेंडेमिक स्ट्रेस से रिलीफ होने के लिए कर रहे हैं। दिव्या, इट इज एक्सेप्टेबल आइडिया, बट अगेन यार, बच्चे को ऐसे स्मोकिंग करते करते ऐसे बीच में लाना उसकी हेल्थ के लिए इट इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। सो योर आइडिया कुड बी बेटर, बट इट कैन बी इनहांस्ड, कि हाँ ठीक है, उसने यहाँ तक किया, क्या बोलते हैं, उन्होंने एंजॉय करने के लिए क्या किया कि चलो कार्ड खेलते हैं, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। उनमें से अनफॉर्चुनेटली कोई स्मोक करने लग गया कुछ भी, और बच्चा आ गया, तो मतलब दैट यू हैव टू मोल्ड योर स्टोरी फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कि दैट यू हैव टू स्टॉप। अब जैसे किसने बोला था, दिवाली वाली बात बोली थी कि रिच लोग हैं, जैसे पीछे दिख रहा है किसी के मुंह में सिगार है, कौन था यार? सर ऐश्वर्य सर। हाँ ऐश्वर्य, ठीक है ऐश्वर्य, यहाँ पे तुमने 2-3 चीजें लॉजिकल वाली एक बात मैंने बोली थी ना सबसे पहले, लॉजिकल। तुम एक साइड बोल रहे हो कि ये दिवाली का टाइम है, और दूसरी साइड बोल रहे हो ये गर्मी का सीजन है। आई थिंक दिवाली गर्मी में नहीं होती है। हाँ वो बात अलग है कि अब तुम इसे साउथ की स्टोरी बता दो देन इट इज ओके, बट जनरली मतलब दिवाली गर्मी में नहीं होती है। तो उस टाइम पे एसी और ये हाफ टी शर्ट, मतलब ठीक है। थोड़ा सा इसको तुम अगर होली बना देते, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन क्योंकि होली पे ये कांड जरूर होते हैं, ठीक है। सर एनी फेस्टिवल। सॉरी सर आई बेग टू डिफर सर, बट सर दिस हाँ, okay. सर ये चाइल्ड लेबर और सर मतलब किडनैपिंग नहीं कह सकते, क्योंकि दिस चाइल्ड इज लुकिंग सो काम एंड हिज ड्रेसेस आर, हिज लुक इज आल्सो सर गुड एनफ, सो आई डोंट थिंक सर चाइल्ड लेबर टाइप्स होगा, और ओके सर, किडनैपर। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, तुमने एक बात बहुत सही बोली कि चाइल्ड इज लुकिंग वेरी काम, ठीक है, चाइल्ड इज लुकिंग वेरी काम, ठीक है। अब देखो तुम्हारी ये बात एकदम सही कि चाइल्ड जो है वेल ड्रेस्ड है, तो देखो एक पॉइंट तो यहाँ पे मे भी तुम्हारा मतलब उससे मैं डिफर कर सकता हूँ। बच्चे को अब किडनैप करके ना, बच्चा अच्छे घर के हुआ तो ऑब्वियसली अच्छे घर के कपड़े पहनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मे भी थोड़ा सा वो हो सकता है, बट हाँ चाइल्ड लेबर इस तरह से हो सकता है कि मे भी ये किसी कसिनो या होटल में आए हों खेलने के लिए या Yes, sir. के लिए, वहां पे Yes, तो sir. जानते हो बच्चे तो वहां पे चौड़ में घूमेंगे नहीं, मतलब वहां पे तो बेचारे नॉर्मल सर झुका के ही काम करेंगे। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि हाँ चाइल्ड लेबर कैन बी एक्सेप्टेबल आइडिया, दैट वाज द पॉइंट बिहाइंड एक्सेप्टिंग दिस आइडिया। गॉट यू ऐश्वर्य? थैंक यू सर, Sir, थैंक यू सर। I want to ask one question. हाँ That PPDT एंड टैट में ऐसा होता है ना कि हम एक जो अपना हीरो होता है वो बाहर से इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, वो PPDT में करते हैं या टैट में करते हैं? बता रहे हैं, देखो एक मिनट, लेट मी कम टू द टैग पार्ट। ओके, दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ यस सर। देखो Yes, sir. लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं क्या स्टोरी बनाता ना, मैं इस टाइप की स्टोरी बनाता कि ठीक है नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर रखता, एक फ्रेंड था अपने, उसने दोस्तों को इनवाइट किया ये वो, और मतलब नॉर्मली जैसे घर में छोटे भाई बहनों का काम नहीं होता है कि वो लोग फिर वेटर की पोजीशन पे आ जाता है कि भाई पानी लाओ चाय लाओ, तो उसका भाई आ जाता है छोटा वाला, बट अनफॉर्चुनेटली उसका वन ऑफ द फ्रेंड्स होता है ना वो स्मोकिंग शुरू कर देता है। तो वो जो फ्रेंड होता है जिसने इनवाइट किया होता है वो उसको उसी टाइम पे रोकता है कि नहीं दिस इज नॉट द प्लेस यू शुड डू, और तुमको बच्चे के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव सच काइंड ऑफ हैबिट डू इट आउटसाइड यार, चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो, बट घर पे ऑब्वियसली किसी के घर पे ऐसे दोस्त लोग को अलाउ तो नहीं करना चाहिए। और ये कार्ड ऊनो भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि ये कार्ड खेलना गलत है, ठीक है। तो मतलब मैं इस तरह की स्टोरी बनाता, इतनी छोटी नहीं बनाता, कुछ और डिटेलिंग डालता, बट मतलब माय आइडिया कैन बी दैट ओनली, ठीक है। अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, psychology. Okay, this person is saying there are these 4 things and this one is saying there are 3. किसको लगता है ये सही है या ये सही है, बताओ भाई। एक्सेप्ट सर दोनों ही अपने अकॉर्डिंग ठीक है। ओके, और कोई और भी लोग बताओ भाई, 72 पार्टिसिपेंट है, केवल गिने चुना 8-10 लोग बता रहे हो, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? यू कैन से इट आल्सो। सर 4 है। कोई बात नहीं, ठीक है। सर हाँ सर अपने अपने नजरिए की बात है सर, मतलब ये इधर से खड़ा है इसको 3 दिख रहा है, उसको उधर से दिख रहा है 4, सर दोनों सही है मतलब अपने अपनी नजर से। ओके, और कोई? सर देर इज एक्चुअली नो राइट और रॉन्ग, दोनों अपनी जगह सही है, बट द लॉजिकल थिंग वुड बी टू
try to see कि दूसरा person 3 बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, other one is saying 4 तो वो क्यों बोल रहा है, और to see the situation from a totally new angle कि अपना दोनों position change करके उसको देखने की कोशिश करें. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दैट बहुत सही रिस्पॉन्स दिया और सभी रिकमेंडेड कैंडिडेट हो. एंड शालू एलिबरेटेड वेरी वेल कि वो अगर पोजीशन चेंज करेगा तो उसको 4 दिखने लगेगा, उसको 3 दिखने लगेगा. सेम गोज फॉर द साइकोलॉजी. अभी किसी ने बोला था मुझसे कि यार उसमें कैसी अच्छी स्टोरी बनाए, कैसी मतलब ऐसा करें कि स्टोरी बहुत अच्छी लगे, एक्सेप्टिंग लगे. इट इज नॉट अबाउट गुड और बैड, इट इज ऑलवेज अबाउट द राइट. इसके व्यू पॉइंट से ये चीज सही है, इसके व्यू पॉइंट से ये चीज सही है. ठीक है, हाँ जरूर इसका 4 कहने के पीछे इसमें एक लॉजिक है और इसके 3 कहने के पीछे लॉजिक है. ऐसे इलॉजिकली नहीं बोल रहा. अगर ये 3 बोलता ये 4 बोलता ऑब्वियसली गलत होते दोनों, लेकिन दोनों अपनी जगह सही हैं. उसी तरह आपके सारे आंसर्स, चाहे वो इंटरव्यू के हों, चाहे आपके क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में आपने कोई स्टोरी बना रखी हो, आपने बना रखा है कि अब लीगल बैकग्राउंड पे बना रखा है, मैं अगर मान लो बनाता हूँ कि टीचिंग बैकग्राउंड पे बनाता हूँ, तो वो मेरी जगह से सही है क्योंकि मेरे घर में लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं. इट डजंट मीन कि मतलब मेरा नजरिया गलत हो गया, मुझे ऐसा टीचिंग पे स्टोरी नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि क्या बोलते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ ना. दैट इज नॉट यार, दैट इज माय व्यू पॉइंट. उसी तरह से सेम साइकोलॉजी का खेल है. आपका जो व्यू पॉइंट है दैट शुड बी वेरी क्लियर. उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना. ये 3 वाला सिर्फ ये बोल दे 4 कि नहीं 4 ज्यादा लग रहा है, ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर भाई ये गए काम से. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी में भी मैंने टैट है. ठीक है, अब टैट क्या है ना, अगेन टैट देखो पिक्चर लिखने का जो मैंने स्क्रीनिंग में बताया था पीपीटीटी में और टैट में ऑलमोस्ट आइडिया सेम है, बट यहाँ पे कुछ और चीजों का ध्यान रखना होता है. जैसे टैट में अगेन इट इज अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इसको मैं और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ऑब्जर्व कर दिया. ठीक है, योर कैरेक्टर इज यू, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. आप जैसा बिहेवियर, जैसा प्लान ऑफ एक्शन, जो एक्शन अपने कैरेक्टर से करा रहा हो, इट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ यू. आपका कैरेक्टर अगर बहुत निगेटिविटी से भरा है कि अगर वो जा रहा है और उसको कार में क्या हुआ कि अचानक से रुक गई, मतलब कुछ भी कोई एग्जांपल ले लिया, अब वो अचानक से ऐसे उस कार खराब ही हो गई, कभी बन नहीं सकती है, फिर उसने नई कार खरीद ली. सच काइंड ऑफ नेगेटिविटी इफ योर कैरेक्टर इज शोइंग दैट इज यू. अगर वहीं एक इंसान हो रहा ठीक है खराब हुई, थोड़ी देर रोका, देखा, बना लिया, चल दिया, दैट इज यू. तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल डिस्क्राइबिंग द प्लान ऑफ एक्शन जो आपका कैरेक्टर कर रहा है आपकी स्टोरी में. दैट्स व्हाई अगेन वो जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लॉजिकल अप्रोच, कॉन्फिडेंस और एक लाइवली पर्सनैलिटी एंड एक जेंटलमैन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. कि यू कैन नॉट से इट कि कुछ भी, कि आप जो है कुछ भी उसको मतलब उल्टी सीधी बातें चीजें करवा दी कैरेक्टर से. नो, इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ यू. So you have to be, you have to consist of those kind of qualities. Second is people find the problem but leaders solve it. देखो अब ये बहुत आसान है प्रॉब्लम को फाइंड करना, बट सॉल्व करने का काम जो है ना वो लीडर्स ही करते हैं. ये पॉलिटिशियन वाले लीडर नहीं, हमारे और आपके जैसे लीडर्स. ठीक है, तो यू हैव टू बी लीडर, देन यू कैन नॉट स्टॉप ओनली हेयर कि आपने प्रॉब्लम बता दी. जैसे आई नो दैट आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व की थी यहाँ पे कि हाँ ये बच्चा जो था मतलब हाँ, लोग सिगार पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं. आपने प्रॉब्लम तो ऑब्जर्व कर ली. ठीक है, बट इफ यू आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन देन इट इज नॉट ऑफ यूज. ठीक है, आप ऑब्जर्व प्रॉब्लम तो हर कोई ऑब्जर्व कर लिया है ना, लेकिन वहीं आप उस चीज को सोल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं. आप चाहे तो अपने इस दोस्त को रिहैब सेंटर ही क्यों ना ले जाते, चाहे आप उस बच्चे को दूर कर देते हैं, अपने दोस्तों को समझाते हैं, या फिर बच्चे को मतलब कहीं और दूसरे कमरे में भेज देते हैं, तो वो सोल्यूशन का पार्ट हो जाता. यस, दिस वाज द मैन हु डू नॉट find only the problem, also find the solution. So this is the thing one should approach. That is the one of the also quality of a gentleman that I was trying to say. I know मतलब आपसे मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कहा था, इसलिए आपने सिर्फ प्रॉब्लम ही बताई. ठीक है, बट इन राइटिंग द स्टोरी देन यू हैव टू आल्सो लुक इनटू द सॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज द वेट. हाँ, डू नॉट इग्नोर द ट्रुथ एंड एसेंस ऑफ स्टोरी. ये देखो ये बहुत बहुत मतलब इतनी गलती इसमें मैंने की है कि दैट आई कैन नॉट टेल यू, कि बहुत बार मैंने एसेंस और ट्रुथ स्टोरी का मिस कर दिया है. मतलब एकदम ब्लंडर नहीं किया, पर एसेंस मैंने बहुत बार मिस किया स्टोरी का. तो यू डू नॉट हैव टू मिस द एसेंस ऑफ स्टोरी. अभी ये सारे वर्ड्स का मतलब आगे आने वाले एग्जांपल में समझ में आएगा. तो ये चीज आपको बहुत दिमाग में रखनी है कि जो सच है स्टोरी का, अगर आपको लग रहा है इट इज कि हाँ भाई इसमें ये सिचुएशन हो रही है, तो बी विद इट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो. अगेन आई एम कोटिंग माई सेल्फ की नेगेटिव सिचुएशन फाइंड करके रुकना नहीं है, वहां उसका एक पॉजिटिव आउटकम निकालना है. ठीक है, if end is well then all is well. Obviously
अंत भला तो सब भला, यानी कि स्टोरी का एंडिंग है ना वहां पे ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने हीरो अपने कैरेक्टर को एम्बिग्यूटी में और टेंशन में छोड़ के आए कि एक दोस्त था एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, पास नहीं हो पा रहा था, उसने एग्जाम की फिर से बहुत मेहनत की पर फिर से पास नहीं हो पाया, दैट्स इट। क्या मिला यार उसको, मतलब दैट इज नॉट अ स्टोरी। वहीं आप लिखते हो कि हाँ ठीक है फिर से फेल हुआ, बट अगेन उसने अपने सीनियर से पूछा, दोस्तों से पूछा, सेशन अटेंड किए, और क्या बोलते हैं जो कुछ वो कर सकता था उसने सीखा और वो क्लियर कर दिया एग्जाम को। ठीक है, स्टोरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, आधी स्टोरी सेम है लेकिन आउटकम दोनों का अलग है। जो दूसरी वाली स्टोरी है दैट इज अ पॉजिटिव वन। ठीक है, एंड व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जैसा सोचते हो दैट इज, कि अगर आपका वही अगेन आपका कैरेक्टर बहुत निगेटिव है, बहुत ऐसे हार मानने वाला है, इट मीन्स कि दैट हाँ आप भी हार मानने वाले हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब लेकिन इसका ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, हाई एम टेक्स यू ऑलवेज अप। हाई एम का मतलब जैसे अभी जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे कि एक इंसान था वो क्रिकेट में बहुत अच्छा करना चाहता था। ठीक है, क्रिकेट में बहुत अच्छा करना चाहता तो उसने मेहनत की, सब कुछ किया, मतलब आप यू आर इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स, you are including a positive response, you are you are not ignoring the truth and essence of story, but your aim is कि उसका एम था कि गली क्रिकेट में जो सामने वाला सोनू है उसको हराना था। तो ही प्रैक्टिस सो मच, वॉच सो मच वीडियो, और उसने कोच से प्रैक्टिस की और एक दिन उसने गली को सोनू को हरा दिया। दिस इज नॉट द हाई एम। हाँ एटलीस्ट उसको, अब ऐसा भी नहीं कि क्या बोलते हैं उसको वर्ल्ड कप ही खिलवा दो, मतलब एटलीस्ट इतना तो एम करो कि हाँ उसने अच्छा खेला, वो स्टेट लेवल तक गया, और जो है उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, उसने अपने स्टेट को रणजी तक खेला। मतलब हाई एम का मतलब ये है मेरा कि स्टोरी में आप जो एम कर रहे हो दैट इज नो वेरी मच सब्जेक्टिव। अगर स्टोरी में किसी को इंजरी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है हाई एम के चक्कर में आप उसको ठीक करके सीधे ओलंपिक ही जितवा दो, नहीं भाई, वहां पे चीजें सिचुएशनल होगी। लेकिन जहां पे सिचुएशन आपके हाथ में है, कभी कभी सिचुएशन पिक्चर खुद देगी और कभी कभी सिचुएशन आपके हाथ में होगी, और when it is the second case कि जब सिचुएशन आपके हाथ में है then always aim for the high. Okay.